मैं आपको खुले रूप में बता रहा हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ मुझे कोई गलत प्रूव करे। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी बनने और टूटने का पूरा खेल चलता है जिसमें सरकार, पुलिस, सरकारी अधिकारी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। मर्डर की सजा किसी को अगर आप जान से मार दें तो जीवन भर की कैद है, लेकिन अगर आप किसी को गाड़ी से मार दें तो आपको बेल मिल सकती है बहुत आसानी से। ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है इन लॉ that law is to curtail freedom and not to expand your freedom. So have you faced such scenario जहाँ पे कि freedom curtail हुआ है and what was your action on that? So what I can call myself is a legal scientist. Instead of doing the routine things which people do, I like to experiment. So this law, it is for privileged people or common people. अगर common people के लिए है तो इनको इतनी difficulty क्यों होती है to achieve? मुकदमा करना एक लग्जरी है, उसमें पैसा खर्चा होएगा, आप तभी करिए जब उससे आपको कोई फायदा होना है। Jai Jagannath. What if a lawyer stood up for the street vendor, the student no one listened to? But at the same time, he builds a thriving character in law firm. Meet Kamlesh Kumar Misra, a Supreme Court advocate and owner of Corpus Juris, who is breaking the myth that fighting for common man is not going to break but to build. This episode is not just for the law students. It's for everyone who thinks that or who believes that path for achieving the real result is very, very difficult. If this episode resonates with you, do subscribe, like and share, and we are coming up with more untold journeys through Beyond the Framework. Jai Jagannath, Kamlesh Misra. Jai Jagannath. So before starting, I just want to discuss, because it's my first question in every podcast, that is this journey of becoming part of Supreme Court advocate, was this pre-planned or it was just conventional, or how you come to choose this line and what was your background, how you started all this? Well, it was certainly not planned. My father was in army. Okay. And he was a religious teacher in army, and I've been raised in different cantonments across the country. That's where my schooling has been. I did my graduation from Lalpur Khalsa College in Jalandhar in Punjab. Okay. And I was pursuing my masters in English. So somewhere, if you ask me, my plan was either to become a teacher or a professor, so to say. And my father always wanted me to join the defense forces, because he always wanted to see me as an officer in the armed forces so that he could salute me. Probably that was his dream. So that is what it was. And to fulfill his dreams only, I had appeared for the Air Force examination. I had cleared the examination and the SSB interview. And I was for my medical examination in Delhi. Okay. I was in Subrato Park. So what happens in the defense forces, after you clear your SSB examination, they send you for medicals, which spans for about 4 to 5 days or even more. And during that period, you stay there. So I was there in Subrato Park. I was being medically examined. And at that time, there were other peers or other friends who said, since we are here in Delhi and there is examination form for Delhi University's entrance test, okay, you can also fill it up. So it was with those friends that I filled up the law faculty entrance examination form, and I appeared for that. And probably the results came simultaneously, that I failed in the medical examination and I got a rank in law faculty, Delhi University. And that is how I took admission. So I would say that is the first step towards this. I had never thought that I would be in the profession of law. My father was completely against it, so much so that I was in fact ousted out of my home. पिताजी ने कह दिया कि ऐसा है कि हम ये सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर तुम्हें लॉ पढ़नी है तो अपने आप पढ़ो, हम उसमें कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे. एंड इनिशियली इट वाज लाइक दैट फॉर सम टाइम. सो देयरफॉर व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग लॉ, मैंने लॉ सेंटर 1 चुना, जिसमें जो क्लासेस थी वो दैट वाज फ्रॉम 3 PM to 6 PM only, so that I could work some places in the meanwhile and earn my livelihood so that I could study law. So that was the journey of law, so to say, as to how I came into law.
Okay. So once you had into this line, so you were very sure that you will continue this and you will go for your own farm. How is it the journey? Means, No, it was not like that that I thought so. I when I was studying law, there was this legal aid clinic which was set up in our college, and probably it we were the batch which was raising that clinic at that time, and I was actively involved in that. And during that period, we realized that there were so many people who wanted to come to the legal aid clinic for their small works, like just like ration cards or anything of that sort. And for certain people, it was a little bit of cases and why the police is not listening to them and stuff like that. So that is my first interaction with the outer world. So you were studying law, and unfortunately, this is something which should come in all law schools. I feel that with all professional studies, you have got your laboratories. So you are studying medical. There is a attached hospital where you go ahead and practice and gain practical experience. The same is the thing with engineering or other professions as well. Unfortunately, with the studies of law, it was lacking, but it is now coming up. People are going for internships and legal aid clinic and moot courts and other stuff. So that is coming up, but there is no real exposure to law as such, wherein they get the responsibility to go ahead and do something. We are always in an assisting role. Uh, it should be more than an assisting role, is what I would say. So, what I was telling you was that when I started my law school and I was there in that legal aid clinic, that was the first interaction which we had with the people. If you allow me, I can tell you a very uh, interesting incident. yeah, please. So this legal aid clinic was there, and since I was managing it, and we were doing small things here and there, and our role as a student was just to go ahead and assist the lawyer, which was sent by the Legal Services Authority. Okay. And so what happened is that this lady who had come there, and she probably had come 3 4 times earlier. So what we used to do as a legal aid clinic, and again that is something which we need to work upon, was that uh, we would go ahead and assist this person to go to the legal aid lawyer, and the legal aid lawyer will then further refer them to the legal aid authority in that particular court. So there was too much of reference. So first she comes to the clinic, then we refer it to the lawyer then refers to the legal aid authority, then that authority again interviews that person and then again refers it to a lawyer. Okay. So it's a long process actually, which may fed up anybody. And this lady, I still remember her name, and with her permission I can use her name. Her name was Nagma Khatun. Okay. And she then, after 3 4 times, she came very angry, and this was a lady who was very very vocal in what she wanted to say. So she came in and she said कि आप लोग क्या करते हो, हमेशा जाते हो हमारी झुग्गियों में और आप लोग बोलते हो कि आपकी मदद होगी और हम यहाँ पे आते हैं, फिर आप हमें कहीं भेज देते हो, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है. And then somebody sent it to me कि आप उनके पास चले जाइए, उनको बताइए. And it so happened that she came to me, and मैंने उससे आम भाषा में, आम प्रोसीजर में ये कहा कि आप हमारे लॉयर से मिलिए जो आपको असिस्ट करें. उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं कई बार आ चुकी हूँ, वो मुझे कहीं कहीं भेजते हैं और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है. तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी परेशानी क्या है. तो उन्होंने कहा कि मैं एक झुग्गी झोपड़ी में रहती हूँ और मेरी 3 बेटियां हैं और मेरे बगल में कुछ लड़के रहते हैं, वो उनको परेशान करते हैं, कभी कभी दारू पीकर बोतल फेंक देते हैं, और पुलिस को जब मैं कंप्लेंट कर रही हूँ तो वो कुछ नहीं कर रही है इस विषय में. Okay. And I imagine, I as a law student, I felt very angry about this, that why police is not taking any action. So I wrote a letter to the commissioner of police. Okay. Okay, and I wrote that I am Kamlesh Kumar Mishra from such and such place, and this lady has approached me saying that police is not taking any action against the persons who are harassing her and her daughters, and I am not very happy about this, I wrote. Okay. And therefore I direct you It was to, insulting. yeah, therefore I direct you to depute a senior police official to look into this issue, and please resolve it, and please also report it back to me as to what action have you taken. And I wrote this letter. I don't know what was I thinking, and I gave it to her that please go to the commissioner of police's office and give it to them.
And you would not believe it. In fact, I did not believe it. After a few days, she came back, Okay. and she came back looking for me, as to where that person is, because the police had really acted. The DCP was deputed to look into this, and the DCP went there and got hold of those boys and took immediate action on them. So this really made her very happy, and since she was so vocal, she came to the legal aid clinic. And on that particular day, when she comes, is the day when there was a visit of the Chief Justice and two other judges of the High Court. And obviously, when the two judges of the High Court and the Chief Justice comes, all other legal aid authority judges and everybody is there. And this lady comes just right in time when everybody was there in the clinic. Oh, It that's could great. it could have looked like a staged thing, but it so happened incidentally that she came into the legal aid room and she said, "Where is that sir who had done my thing, and I want to thank him, or kahan hai wo, unko bulaiye." And obviously the lawyer who was there in that legal aid clinic, he came forward and she said, "No, no, no, not this one. वो कहाँ है, वो जो पतले से लंबे." At that time I used to be very lean and thin. So my Professor Ved Kumari, who was the professor in charge at that time, she understood who she was talking about, and she sent somebody to call him, because again I was there in arrangement for this visit. And every time some teacher called for me, I always used to think कि इस बार मैंने क्या गलती कर दी है. So this lady somebody came, and then they came here. When I came to see that, then this lady said कि yes, यही वो आदमी है. So then the Chief Justice of Delhi High Court asked me, "What have you done?" So I told him that this was her issue, and she came, and I wrote a letter to the Commissioner of Police, and probably some action has been taken. So he asked me, "Have you not taken the usual route of filing 156(3), which is the usual route for going ahead and doing these cases?" I said she had already tried it. We had referred it to her. Therefore, I wanted to write a letter about this. And the Chief Justice asked me that, "Show me the letter which you had written." And he saw that letter, Okay. which I had written, because we had a copy of it in her file. And the Chief Justice told me, "I am the Chief Justice of Delhi, and even I cannot write such a letter to the Commissioner of Police which you have written." But he told me a very important thing, that it is very important, not as a legal aid authority or not as a legal aid person, but every citizen, because the Commissioner of Police is responsible to the citizens of this country, and you should always write. Okay. It is in his discretion to decide whether he wants to do it or not, as long as you are not writing false and you are writing your true beliefs. There is no problem in communicating even in this way. Oh. So that is how I would say was the journey which brought me near to the law and to the people. Okay. And I was very interested in seeing as to how law interacts with the real people. उनके जीवन पर, आम आदमी के जीवन पर कानून का क्या असर पड़ता है और वो उसको कैसे उपयोग कर सकता है, इसमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट था. And probably that is the reason why I've been into this kind of practice that I'm in. So, my next question would be, with your background and skills, you could have easily choose a genre or a line in lawyer also, where you could earn more. So, had you not thought about that, or you always thought that this would be my priority? Because that is also main part while choosing Absolutely. any profession. So I would not say that I'm not earning by doing the kind of cases that I go ahead and do. I certainly do earn, and I earn handsomely. I run a firm, you can say, which is named as Corpus Juris India, and we have more than 30 lawyers who work with me in the firm, and we are able to go ahead and manage it. But that being said, you are right that I could have had chosen something in corporate law and could have had earned better, so to say. Yeah, because these are the general names which any student of law student will hear. Absolutely, absolutely. So initially, what happens, that is another question as far as what all are the avenues for a lawyer. But yes, when you say so, in a corporate law or in a bigger firm, I had very good offers initially to go ahead and join them, and that would have had put me into a completely different trajectory, so to say. But the reason why I chose so, as I told you, मुझे इस बात में बहुत आनंद आता था कि
आम आदमी का कानून के साथ क्या संपर्क है और उसके साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है. So what I can call myself is a legal scientist. Instead of doing the routine things which people do, I like to experiment. So that is the first thing. How I came into this, because my life has always been, what should I say, been guided by the incidents which have happened in my life, and which is there true for all of us also. It so happened that I was when I was thinking what should I do, whether I should go for corporate law, and I had also appeared for some interviews in some firms at that time and some companies. It so happened that I was just crossing by a road near Kashmiri Gate, and there is a bridge which is called Yudhishthir Setu. Okay. And besides that, there was a slum cluster, and there was a demolition going on. So this is of the year 2014. So I had passed out in the fag end of year 2013, and this is the incident of 2014. When I saw that there is a demolition taking place, there's lots of police, bulldozers, and women, children are crying. The stuff their articles are kept out, and I really felt curious first of all, and second, also agitated, because till now you've studied law in the books, Right. and your interaction with the people has been in a very limited space of the legal aid clinic, where people come, and where, since you are in a government agency, because it was run by DLSA, even the police officials and everybody was very, very compliant. So it is for the first time that when I'm interacting with them out of that space, and I'm thinking कि हमारा कानून कहता है जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार है, और अगर आपके खिलाफ कोई कुछ करता है तो नोटिस देना चाहिए कम से कम. तो ये सब बातें हमने किताबों में पढ़ी हैं, और वही पढ़ के हम जा रहे हैं पुलिस वाले से कहने कि भाई ये तुम क्यों कर रहे हो, इनको डिमोलिश क्यों कर रहे हो. तो पुलिस वाले कहते हैं हम तो सिर्फ सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, डिमोलिशन डीडीए वाले कर रहे हैं. तो हम डीडीए वालों के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप ऐसे डेमोलिशन कैसे कर सकते हैं, और आप क्यों डेमोलिशन कर रहे हैं, और क्या आपने इनको नोटिस दिया डेमोलिशन करने से पहले. और उन्होंने आपको इतनी तुच्छ नज़र से देखा कि तुम कौन हो तुम ये पूछने वाले आदमी कौन हो मेरे. और हम किसी फिल्मी डायलॉग की तरह कह रहे हैं कि मैं एक आम आदमी हूँ, क्या मैं आपसे पूछ नहीं सकता हूँ कि ये डेमोलिशन क्यों हो रहा है. और उन्होंने एकदम हटा दिया कि इनको हटाइए यहाँ से, ये क्यों यहाँ पे पूछने के लिए आ रहे हैं. सो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सो टू से, इन द आउटर स्पेस. और मैंने लोगों से कहा कि ये आपके साथ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये डेमोलिशन इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये डेमोलिशन इलीगल है. लेकिन चूंकि जुग्गीवासी भी लगभग हर साल वहाँ डेमोलिशन होती है, और उसके पीछे का कारण मुझे बाद में पता चला, और इसलिए उन्होंने इसको नॉर्मलाइज कर लिया कि हाँ हमारे घर हैं, हर साल टूटते ही हैं, उसके बाद हमें दोबारा बनाना पड़ता है. तो इस तरह से उन्होंने मान लिया. वहाँ के प्रधान को भी जब हमने कहा तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप क्या करेंगे, ये तो हमेशा होता है. देयर वाज दिस लेडी, शोभा दीक्षित नाम है उनका, जो वहाँ पे कश्मीरी गेट पे हनुमान मंदिर है, मरगट वाले हनुमान मंदिर, वहाँ पर वो इस झुग्गी में रहती है, और वहाँ पर कुछ छोटे मोटे खिलौने बेचकर अपना जीवन यापन करती है. Okay. और वो लेडी बहुत रो रही थी. मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मैंने कल ही कुछ खिलौने खरीदे थे, कुछ 100, 200, 300 रुपए के, और मेरी झुग्गी के साथ साथ इन्होंने वो खिलौने भी तोड़ दिए. और उसके लिए इसका मतलब था कि उसका घर भी गया, उसकी एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड सब कुछ चली गई. वो बहुत गुस्से में थी और बहुत दुखी थी. तो जब उसने सुना कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, और उसने कहा कि हाँ ये मेरे साथ हुआ तो गलत ही है, और अगर कुछ करना होगा तो मैं करूँगी. तो मैं भी ये सोच रहा था कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. कुछ मित्र थे, उनसे मैंने बात करी, और मैं इनको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा. दिल्ली हाईकोर्ट में एक अजीब नज़ारा हो गया कि जब मैं इनको लेके जा रहा था तो ऑब्वियसली जुग्गीवासी हैं, तो वैसे ही देखने में वैसी नहीं लग रही हैं जैसे हाईकोर्ट के क्लाइंट्स होते हैं आमतौर पर. और उनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं था. तो उन्होंने कहा कि ये इनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, आप इनको नहीं लेके जा सकते हाईकोर्ट के अंदर. मैंने उनको उसी समय जवाब दिया कि आप ये मानिए कि अगर किसी व्यक्ति को यही केस करना है कि मेरे पास आई कार्ड नहीं है और मुझे आई कार्ड दिलाइए, तो क्या आप उसे अंदर नहीं जाने देंगे. और उसके बाद बहुत सारी बहस हुई मेरी हाईकोर्ट सिक्योरिटी अथॉरिटीज के साथ, एंड अल्टीमेटली जो उनके सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि अगर आप अंडरटेकिंग लिख के देंगे कि इनको आप अपनी जिम्मेदारी पे अंदर लेके जा रहे हैं तो आप लेके जा सकते हैं.
तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो मैं उनको लेकर गया, और तब मुझे समझ में आया आइडेंटिटी का कितना महत्व है। तो पहली चीज जो मैंने की अपने वहां पर जाकर हाई कोर्ट में, वो ये किया कि एक कागज पर मैंने उनकी फोटो लगाई, उनका नाम लिखा, उनके पिता का नाम लिखा, एड्रेस लिखा और मोबाइल नंबर लिखा, और मैंने अपना स्टैंप लगाया अच्छा। कि मैं इनको सर्टिफाई कर रहा हूँ, ऑथराइज कर रहा हूँ कि ये व्यक्ति हैं। और मैंने साइन करके उनको लैमिनेट करके वो दे दिया कि कम से कम ये आई कार्ड आपके पास रहेगा। और आइडेंटिटी कितना बड़ा मुद्दा है किसी स्लम ड्वेलर के लिए, ये मुझे उस दिन समझ में आया, क्योंकि उस आई कार्ड के दम पे ही वो इतनी प्रसन्न थी कि उसे कुछ आई कार्ड मिला पहली बार जीवन में, और उसी आई कार्ड के बल पर उसने अन्य जगह पे भी अपनी आईडीज बाद में बनवा पाई। अब वो रहती वहीं थी और कई सालों से रही थी, लेकिन कोई उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं कि वो यहाँ पर रहती है वो आई कार्ड से। एंड तब हमने उनका पहला केस फाइल किया कि इन लोगों का डिमोलिशन हो रहा है और इनको तोड़ा जा रहा है यहाँ पर, और ये पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि कानून झुग्गियों के विषय में ये कहता है कि अगर आपको हटाना है जो भी है झुग्गियों को, तो आपको उससे पहले क्या कानूनी प्रक्रियाएं फॉलो करनी पड़ेंगी। तो हाईकोर्ट ने डीडीए के वकील से पूछा, क्योंकि हाईकोर्ट में ऐसी व्यवस्था है कि जब आप केस फाइल करते हैं तो उसी समय ऑपोजिट पार्टी भी मौजूद रहती है। तो उन्होंने डीडीए से पूछा, तो डीडीए ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब इलीगल था और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, इन्होंने जमीन पे कब्जा कर रखा है, जो आम बातें डीडीए कहती है। और उन्होंने कहा कि हम इनको डिमोलिश कर चुके हैं। हुआ यूं कि कोर्ट हमारे फेवर में थी, उन्होंने बोला कि नहीं आपने कानूनी प्रक्रिया फॉलो की या नहीं, आप ये हमें बताइए। उन्होंने नोटिस इशू किया उसमें, और जब नोटिस इशू कर दिया तो मैंने कहा कि सर इसमें स्टे कर दीजिए आगे की मतलब डेमोलिशन। तो डीडीए बहुत जोर से चिल्लाया कि नहीं नहीं, हमने सारी डेमोलिशन कर दी है, सब कुछ तोड़ा जा चुका है, सब कुछ हटाया जा चुका है, इसलिए स्टे का कोई सवाल नहीं उठता। और वो बहुत सीनियर लॉयर थे, और मेरे लिए शायद ये मेरा पहला केस था इस तरह का हाई कोर्ट में। और उन्होंने बहुत जोर से कहा कि नहीं नहीं, ये पूरी तरह से ये कैसे बोल सकते हैं, ये नया लड़का ये कैसे बोल रहा है, ये हमने सब डेमोलिश कर दिया है, सब हटा दिया है। तो मैंने जज से सिर्फ एक बात कही कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं तो एकदम नया इस प्रोफेशन में हूँ, लेकिन अगर जज ये कह रहे हैं कि सब कुछ तोड़ा जा चुका है, सब कुछ हटाया जा चुका है, तो अगर कोर्ट अभी स्टे ऑर्डर देगी तो ये किसके फेवर में होगा, मेरे फेवर में या इनके फेवर में? क्योंकि स्टे का मतलब है जैसी स्थिति है वैसी बना के रखिए, तो अगर सब कुछ तोड़ा जा चुका है तो सब कुछ टूटा रहेगा। तब वो अचानक से जज ने ये बात सुनी और बोला कि हाँ ये लड़का तो ठीक कह रहा है, स्टे तो आपके फेवर में होगा। तो अब डीडीए बोल रही है कि नहीं नहीं, कुछ बचा हुआ है। और जज ने कहा कि देखिए अब आप फंस गए अपने आर्ग्यूमेंट में, उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया। उसके बाद लगभग 10 वर्षों तक वो केस चलता रहा, और बाद में ये ऑर्डर हुआ कि उनको रिहैबिलिटेट किया जाए दूसरे स्थान पर। तो 10 साल उन्होंने कम से कम एक शांतिपूर्ण जीवन जिया, और मेरे लिए सबसे सुकून की बात हुई, एंड बिकॉज दिस वाज अ केस जिसमें हमें बहुत जल्दी स्टे ऑर्डर मिला, और उस समय पर दिल्ली में लगभग हर जल्दी मतलब कितने? जल्दी मतलब विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर हमने उन्हें वो स्टे ऑर्डर दे दिया, क्योंकि जिस दिन वो आई उसी दिन मैंने केस फाइल किया, और अगले दिन ना लिस्ट होके उसके अगले दिन लिस्ट हुआ और उसमें स्टे ऑर्डर आ गया। इस केस के कारण फिर हुआ यूं कि कई और जगहों के लोग भी आने लग गए, क्योंकि वो सुनने लग गए कि हमारा स्टे हो गया, तो कुछ अन्य जगह के लोग भी आए, और ये एक ऐसा क्रम बनता गया कि विभिन्न प्रकार के लोग इस तरह के आते गए और हम ये काम करते गए। और बाद में 2015 में दिल्ली सरकार को ये पॉलिसी बनानी पड़ी कि स्लम ड्वेलर्स के लिए हमारी पॉलिसी क्या होगी, और किस तरह से इनका डिमोलिशन हो सकेगा, अगर हमें इनको हटाना है तो हमें क्या प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमने इतने केसेस फाइल किए स्लम ड्वेलर्स के, जिसके कारण कि दिल्ली सरकार को भी अंततः पॉलिसी अपनी लेकर आनी पड़ी, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार उन्हें बनानी पड़ी, क्योंकि बार बार जब दिल्ली हाईकोर्ट ने देखा कि इस तरह के डेमोलिशन हर रोज हो रहे हैं, और कोई एजेंसी कुछ बोलती है, डीडीए कहती है, क्योंकि दिल्ली में इतनी सारी एजेंसीज हैं, डीडीए है, एमसीडी है, पीडब्ल्यूडी है, सीपीडब्ल्यूडी है, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड है, इतने सारी एजेंसी, डूसिब है, जिनके पास अपनी अपनी जमीनें हैं, और वो हर जमीन पर जो झुग्गी ड्वेलर है उनको अलग रूप से देखती है और उनके साथ अलग व्यवहार करती है। तो इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, पूरी दिल्ली में एक पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी जमीन हो और किसी की जमीन पे भी झुग्गी झोपड़ी हो, एक ही तरह की पॉलिसी फॉलो होगी। तो इस कारण से कहीं ना कहीं मैं इन सब तरह के केसेस में जुड़ता गया।
इसमें महत्वपूर्ण योगदान मेरा पहला ऑफिस जिसमें मैंने काम किया, क्योंकि इस तरह का काम वो कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ ये काम करके। उसका नाम ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क था। Okay. और सीनियर एडवोकेट है कॉलिन गोंसाल्विस। मैंने उनके साथ शुरुआती दौर में लगभग कुछ वर्ष काम किया और उसके बाद मैंने अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की। ओके। जो स्लम डवेलर्स हैं उनके लिए बहुत आम बात बोला जाता है कि उनको उठाया, मतलब जैसे ही डिमोलिशन होता है विद इन नो टाइम फिर वो दोबारा रिक्रिएट करते हैं। तो इवन दो हमने वो पूरा केस डिस्कस करा कि रिक्रिएट और वो, लेकिन बिकॉज ऐसा तो नहीं कि स्लम डवेलर आर नॉट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्टिंग थ्रू डेली मेड्स होते हैं हमारे, या खाना ही बनाने वाले होते हैं तो उन्हीं के थ्रू सपोर्ट करते हैं। सो जो ये लॉ है, हाउ इट इज सपोर्टिंग द कॉमन पीपल earlier, फिर obviously I understand your contribution, but actually उनके लिए लॉ क्या है? आपने बहुत अच्छी बात से शुरुआत करी। हम लोगों को ये आम रूप में बताया जाता है और ये मुझे कोर्ट्स ने भी कहा है और हमें शायद फिल्मों ने भी ये आइडिया दिया है कि झुग्गी वालों को आप मकान दीजिए और वो मकान किराए पे चढ़ाकर वापस उसी जगह पर आ जाएंगे। राइट। और हम इसका दोष उन पर देना चाहते हैं कि ये दोष उनका है कि ये वापस आ जाते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या एज अ प्लानर मैंने सही प्लान किया? क्योंकि मैं तो उनको रिहेबिलिटेट करना चाहता हूं, मैं झुग्गी हटाना चाहता हूं और इसलिए मैंने ये योजना बनाई कि मैं इसको इस जगह पे डाल दूंगा। तो मैं ये क्यों नहीं सोचता कि मेरी योजना में क्या गड़बड़ थी कि वो वहां वापस आ गए? कहीं ना कहीं ये फॉल्ट उसको देने से बेहतर होगा कि आप ये सोचें कि हमारी योजना में क्या फॉल्ट थी। हमारी योजना में फॉल्ट, हालांकि बहुत बड़ा इशू है अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें, परंतु आपको सोचने की बात, सबसे पहले सोचने की बात यह है, और ये मैं सभी के लिए कहता हूं, सभी तरह के ग्रुप्स के लिए, चाहे आप झुग्गी झोपड़ी वालों को ले लें, स्ट्रीट वेंडर्स को ले लें, कई जगहों पर लेबर चौक होते हैं, लेबरर्स रहते हैं उन जगहों पर। तो सोचने वाली बात यह है कि वो लोग वहीं पर क्यों हैं, ये झुग्गी झोपड़ी यहीं इसी स्थान पर क्यों है? और आप हमेशा देखेंगे झुग्गी झोपड़ी किसी न किसी पॉश इलाके के बगल में होगी। to support, because that is their earning also. That is their earning also, and because they are getting their livelihood. उनको उनका रोजगार वहां पे मिल रहा है। और आपको जो हम किंचित मैं आज ये कह सकता हूं कि हम भी, जो हमें हमारे घर में हाउसमेट्स काम करते हैं, ड्राइवर्स काम करते हैं, प्रेस वाले काम करते हैं, आपको ऑटो ड्राइवर्स काम करते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स काम करते हैं, आपके झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, आपके रेडी पटरी वाले हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, डिलीवरी बॉयज हैं, सफाई कर्मचारी हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हमें इतनी सस्ती सर्विस इस देश में क्यों मिल पा रही है? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमारे हर बसावट के आसपास कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी है जहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत लो है। राइट। हम, और ये हमें शर्म आनी चाहिए एज अ सोसाइटी इस बात पे, हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में हमारी नौकरानी समय पे आ जाए, हमारा काम कर दे, हमारा ड्राइवर समय पे आए, काम कर दे, हमारा प्रेस वाला सही समय पे आए, हमारी डिलीवरी सही समय पे हो। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कोई भी ये हमारे आसपास रहे। ये लोग आए हम, और ये मैंने कोर्ट को कहा ये बात, दिल्ली हाई कोर्ट को, हम ये सोचते हैं कि ये लोग हमारे घर में आए, हमारा काम करें और घर से निकलते ही आसमान में चले जाएं। हमें कहीं दिखने नहीं चाहिए, चाहे वो हमारे लिए ही काम कर रहे हो। तो पहली बात तो इस बात को समझने की है कि ये हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है, हमारे बीच के लोग हैं और हम सब आपस में रहकर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो दूसरी बात है वो ये समझने की, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है किसी झुग्गी ड्वेलर की वो बहुत कम है और वो जमीन पे रह रहा है, जमीन की कॉस्ट ऑफ लिविंग अगेन कम है। लेकिन जैसे ही आप इसको वर्टिकल बनाते जाएंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जाएगी। आप किसी को पहली मंजिल पर डाल दीजिए, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, दूसरी मंजिल पर अलग है, सबसे ऊपर वाले की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है। तो पहले तो वो जो जिस कॉस्ट ऑफ लिविंग में रह रहा था, आपने उसकी अचानक से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा दी। ठीक है। दूसरी बात आपने क्या किया, आपने उसे वहीं पर स्थान नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली। और चूंकि ये कहा जा रहा है हमारे देश में, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने लोगों को बहुत मूर्ख बनाया कि
हम आपको जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। वो सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि उन्हें ये समझ में आया कि हमारी जो ये पॉलिसीज हैं कि हम अपने झुग्गी वासियों को, अपने यहाँ के लोगों को दिल्ली से कहीं बाहर कह देंगे, नरेला चले जाओ, बापरोला चले जाओ, और एकदम दिल्ली से बाहर बाहर के इलाकों में चले जाओ। और वही होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आप इन सब लोगों को वहां भेजेंगे और ये सब लोग वापस आ जाएंगे। क्यों? इसकी स्थिति आप इस बात से समझ सकते हैं, जो अगेन मैंने एक कोर्ट को बताई थी, कि मेरे पास एक बूढ़ी महिला जो घरों में काम करती थी, और आज जो आप सरोजनी नगर, नौरोजी नगर के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं जहां पर पहले सरकारी क्वार्टर्स थे, उन्हीं सरकारी क्वार्टर्स में कुछ स्लम्स भी थे, क्योंकि वही लोग उनके ड्राइवर्स थे और घर में काम करने वाले थे, और चूंकि जगह बहुत थी तो उन्होंने उसी एरिया में अपने अपने घर बना लिए थे। उन महिला को मैं हमेशा बुलाता था कि आप 3 बजे या 4 बजे आ जाइए, तो हमेशा 5 या 6 बजे आती थी बूढ़ी महिला। तो एक दिन मैंने उन्हें बहुत डांटा कि मैं आपको इतने समय पे बुलाता हूँ और आप क्यों इतना लेट आते हो। तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत ही माइन्यूट और मिनिएचर बात कही, जिसका बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है, जिस बात को जब मैंने कोर्ट को बताया, ओनली दैट वन मी दैट केस। उसने बोला कि साहब, जहां मैं रहती हूं, अगर वहां से मैं बस लूं तो मेरा किराया 10 रुपया है, लेकिन अगर मैं 2 स्टैंड चल लूं तो मेरा किराया 5 रुपया होगा। और 2 स्टैंड चलने का मतलब लगभग 3 किलोमीटर। वो महिला 5 रुपए बचाने के लिए 3 किलोमीटर चल रही है। आप उसको कहेंगे कि आप चले जाइए बापरोला, आप चले जाइए नरेला, आप चले जाइए दिल्ली से कहीं और बाहर, जहां से आने की कॉस्ट कम से कम 50 रुपए 100 रुपए बढ़ जाएगी उस जगह पे जहां पे वो काम करती है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ही नहीं बढ़ाई आपने, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल भी बढ़ा दिया उसके लिए। और उसको तो बहुत कम पैसे मिल रहे हैं किसी भी अन्य स्थान पर जहां पे भी वो काम कर रही है, उसके आसपास उसे काम नहीं मिलेगा, उसे काम के लिए यहीं वापस आना पड़ेगा, और इस काम में भी उसे अधिक पैसे नहीं मिलेंगे। उतने ही मिलेंगे। कोई आपको इसलिए अधिक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, वो शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो जाए, लेकिन कोई आपको अधिक पैसा इसलिए नहीं देने के लिए तैयार है क्योंकि मैं आपको वहां भेज रहा हूं, या सरकार भी नहीं देने के लिए तैयार है कि मैं आपको ट्रैवल अलाउंस दे रहा हूं क्योंकि मैं आपके घर से दूर आपको भेज रहा हूं। तो इसीलिए ये पॉपुलर बिलीफ कि झुग्गी वालों को मकान देते हैं तो वो वापस आ जाते हैं, इज बैड प्लानिंग। और कोई प्लानर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता कि ये मेरी घटिया प्लानिंग है, मेरी गलत प्लानिंग है। ये सब कहना चाहते हैं कि झुग्गीवासी मक्कार हैं। अच्छा। जी। ओके, अब एक मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है इन लॉ, दैट लॉ इज टू curtail फ्रीडम एंड नॉट टू expand your freedom. So have you faced such scenario जहाँ पे कि freedom curtail हुआ है, and what was your action on that? See, कानून अधिकार देता है कि कानून अधिकार छीनता है। हाँ. जैसा आपने बताया कि शायद अंग्रेजी में ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है, दैट लॉ curtails your freedom, बट जो पॉपुलर बिलीफ ये है, जो हम सुनते भी हैं, कि कानून हमें अधिकार देता है। मेरी समझ में कानून अधिकार छीनता ही है ज्यादातर केसेस में। और अगर उसको बेहतर शब्दावली में कहूं, और इफ आई से इट इन राइट वर्ड्स, देन दैट इट रेगुलेट्स योर फ्रीडम और इट रेगुलेट्स योर राइट्स। ये बहुत शानदार शब्द है, रेगुलेशन। जैसे, और मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि कानून कह रहा है कि आपको जीने का अधिकार है, तो क्या कानून के अधिकार देने के बाद ही मैंने जीना शुरू किया? चाहे कानून वो अधिकार दे या ना दे, मैं तो जी रहा हूं। ठीक है, कानून ने मुझे मूवमेंट का अधिकार दिया, तो क्या कानून ने जब तक वो अधिकार नहीं दिया था तो मैं मूव नहीं कर पा रहा था? मैं मूव कर रहा था, लेकिन कानून ने उसको और रेगुलेट कर दिया कि नहीं, आप यहां नहीं जा सकते, इस समय में वहां नहीं जा सकते, इस वहां जाने की ये व्यवस्था होगी या वहां जाने की। परंतु एक मॉडर्न सोसाइटी में ऑर्डर लाने के लिए इन चीजों की कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है। परंतु पॉपुलरली कानून अधिकार देता नहीं है, कानून अधिकार छीनने के लिए बनाया गया है। ये बिलीव पहली बार सुना है, बट इससे पहले हमेशा यही डायलॉग है मूवीज एंड एवरीवेयर कि कानून हमें अधिकार देता है, ना कि लेता है। ओके, जब आप कॉलेज से निकलते हो एज ए लॉ प्रैक्टिशनर, तो हमेशा एज पर टेक्स्ट बुक ऐसा लगता है कि नहीं,
मैं ऐसे केसेस लड़ूंगा जिसमें ह्यूमन राइट्स हो, बिकॉज मूवीज में भी इमोशनल स्टैंड पॉइंट और उस पर देखो तो हम एक ऐसे चीज अचीव करते हैं जो देखने में ह्यूमैनिटी वाइज अच्छी लगे, है ना। बट इन एक्चुअल ये इतना इजी शायद है नहीं। दैट्स वाई अगर देखा जाए तो लॉयर्स में ज्यादातर प्रोफेशन और ज्यादा जो थ्राइविंग करियर है वो क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं या कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने जैसे अभी आपने बताया जितने केसेस में, तो जब आप बिसाइड दिस केसेस ऐसे कोई केसेस थे जिसमें आपको लड़ते टाइम बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिला फ्रॉम ऑपोजिशन, बट स्टिल यू हैव क्लियर्ड दैट पाथ एंड आगे बढ़े डिस्कशन? So in all my cases I get very much resistance, क्योंकि मेरे लगभग जितने मैं मुकदमे करता हूँ उसमें से 70% मुकदमे शायद सरकार के खिलाफ ही होते हैं, चाहे जो भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उनके खिलाफ ही होते हैं। और इसीलिए उनका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है और बहुत बड़ा भी होता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट्स सरकारों को थोड़ा बहुत निश्चय ही अधिक स्पेस देती हैं एक प्राइवेट सिटीजन के बनस्पत, स्पेशली जब आपका क्लाइंट बहुत गरीब हो और उसके ऊपर ये सब ठप्पे लगे हों कि ये इलीगल एनक्रोचर है, ये तो सड़क पे बैठता है और शायद कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा दिखता नहीं है, बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनता, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस और अधिक हो जाती है। मैं आपको 2 घटनाओं से बताऊं। एक डेमोलिशन हो रही थी निज़ामुद्दीन बस्ती के पास, और मैंने वो मुकदमा लगाया था कि इनकी डेमोलिशन यहाँ पर इलीगल हुई है। उस समय की जो चीफ जस्टिस थी, उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो कह रहे हैं कि वहाँ इतनी ज़्यादा डेमोलिशन हुई है और इतने ज़्यादा लोग हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि हमने भी अपना एक कोर्ट कमिश्नर भेजा था और उन्होंने हमें रिपोर्ट दिया कि वहाँ इतने लोग नहीं, और जितने लोग थे उनको हमने शेल्टर में डाल दिया है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ठीक है, आप ये मुकदमा कल के लिए रख लीजिए, मैं इंक्वायर करूंगा। अच्छा, एक दिन के लिए। तो उन्होंने अगले दिन के लिए मेरी रिक्वेस्ट मानकर अगले दिन के लिए रख दिया। फिर मैं वहाँ बस्ती में गया, मैंने बोला कि देखिए, कोर्ट ने मुझे बोला है कि आप लोग तो यहाँ है ही नहीं और यहाँ पे कोई डेमोलिशन नहीं हुई है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब मेरे साथ कोर्ट चलें। तो मैंने लगभग दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के लिए पासेस लगते हैं, तो कई लोगों को पासेस दिए और उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप चाहते हैं कि मैं मुकदमा लड़ पाऊँ तो आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। तो सभी, बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे बच्चे, क्योंकि उन सबका घर तोड़ दिया गया था, तो इसलिए उनके लिए वो जाना चाहते थे कि कोर्ट, और उनके लिए देखने वाली भी बात भी थी कि ये कोर्ट में क्या होता है और क्या जगह है ये कोर्ट। तो पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट में लगभग मेरे ख्याल से 50 महिलाएं और उनके बच्चे, और वो बच्चे अपना हल्ला कर रहे हैं, रो रहे हैं, गा पीट रहे हैं। और मैंने उन्हें कहा कि आप अब सीधा कोर्ट नंबर 1 में चले जाइए जहाँ पे हमारा मुकदमा लगा हुआ था। और जैसे ही ये सारे बच्चे महिलाएं वहां पे घुसी और बहुत हल्ला करने लग गए, सारा कोर्ट का माहौल बिगड़ गया। और चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये सब कहाँ से अचानक से इतने लोग आ गए, तो उनके कोर्ट मास्टर ने बताया कि शायद ये कमलेश जी के क्लाइंट्स हैं, क्योंकि आपने कल उन्हें कहा था। तो जज ने कहा कि उन्हें फ़ोन करके बुलाइए। और मेरे पास फ़ोन आया तो मैं इमीडिएट पहुंचा वहां पर। तो चीफ जस्टिस मुझसे गुस्सा हो गए कि आपने इन लोगों को क्यों बुला लिया, इतने सारे लोगों को। मैंने कहा क्योंकि आपने कहा था कल कि वहां पर इतने लोग हैं नहीं और डेमोलिशन नहीं हुआ, और ये तो पूरे लोग भी नहीं है, मेरे ख्याल से 10% लोग भी नहीं है। अच्छा। तो फिर वो अपनी बात से तो पीछे हुए, लेकिन फिर उन्होंने मुझ पर किसी और तरह से बात कही कि आपने इनको बुला तो लिया, लेकिन इनकी एक दिन की दिहाड़ी चली गई, और क्या इन लोगों को समझ में भी आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने कहा सावधान, ऐसी बात मत कहिए प्लीज। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ वही बातें यहाँ पे समझ सकता है जो कोट पैंट पहन के आए या साफ सुथरे कपड़े पहन के आए, और क्या जो सब व्यक्ति साफ सुथरे कपड़े पहनकर आए हैं या कोट पैंट पहन के आए हैं वो हमारी सारी बात समझ रहे हैं, इसका कोई सर्टिफिकेशन दे सकता है क्या? और तीसरी बात जो बहुत जरूरी है वो डेमिनर होता है। आपके इन लोगों के सामने ये पुलिस वाला खड़ा है यहाँ पर सर झुका के, यही पुलिस वाला जब इनकी बस्ती में जाता है तो वो भगवान से कम नहीं होता है। वो जो बोल देगा वो इनको करना पड़ेगा, और वो करते आए हैं। लेकिन आज जब ये कोर्ट में आए हैं और देख रहे हैं कि वो आदमी किसके सामने सर झुका के खड़ा है, तो उन्हें पता है कि अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो कहां जाना है।
तो चीफ जस्टिस ने फिर ये बात समझी, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं आपका मुकदमा सुनूंगी, अभी आप इन्हें ले जाइए और कुछ खिलाइए पिलाइए मेरे खर्चे पर। ओके। तो और एंड फ्रैंकली चीफ जस्टिस ने वो खर्चा दिया जो मैंने उनको चाय पानी समोसा खिलाया, उन्होंने पर्सनली अपनी जेब से दिया इसके लिए। और बाद में वो मुकदमा भी सुना एंड वी हैड अ वेरी गुड ऑर्डर इन दैट। ओके। सो जनरली जो केसेस चलते हैं उसमें तारीख पे तारीख होता है, आपके केस में ऐसे एक आध दिन में कैसे हो जाता है जनरल? देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट की कम से कम और सुप्रीम कोर्ट की और रादर बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स की, दिल्ली में तो खासकर, ये ब्यूटी है कि अगर आप कोई केस फाइल करें दिल्ली हाई कोर्ट में, तो खासकर अगर आपने आज मुकदमा फाइल किया तो अगले दिन लिस्ट होएगा। तो पहली तारीख आपको अगले दिन ही मिल जाएगी। जो समस्या आती है वो उसके बाद की तारीखों में आती है। और अगर पहली तारीख में आप स्टे ऑर्डर ले पाते हैं तो उसके बाद आप उसका एडवांटेज ही उठा रहे होते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, बहुत सारी तारीख लगी तो भी क्या, मेरे पास तो स्टे ऑर्डर है। तारीख से समस्या उस व्यक्ति को होती है जिसको स्टे ऑर्डर से समस्या है, हाँ, या इंटरिम रिलीफ जिसके पास नहीं है। तो फाइनल रिलीफ के लिए अगर बहुत ज्यादा समय लगता है तो वो हमारे लिए समस्या बनती है। बट अदरवाइज मैंने देखा है, आप हमेशा सुनते होंगे कि, और मीडिया में इनको चलाया भी जाता है कि सलमान खान के लिए या किसी बड़े आदमी के लिए रात को कोर्ट खुली, और लोग बहुत बुराई करते हैं कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। मुझे याद है आज भी सलमान खान का जो ब्लैक बक वाला केस था, और शायद उससे एक और एक्सीडेंट वाला कोई केस था, हाँ, जिसमें बिना जजमेंट की कॉपी के उन्होंने उनका कन्विक्शन स्टे कर दिया। हाँ, और सभी लोगों ने उसकी बहुत बुराई की, हमारे स्पेशली लीगल सर्कल्स में, कि ये तो बहुत गलत ट्रेंड है। और ये मैंने बोला नहीं, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि ये जब बड़े आदमी कुछ करते हैं तो मैं उस गरीब आदमी के लिए भी उसका उपयोग कर पाता हूँ। और मैंने इसका कम से कम 50 बार उपयोग किया है जब मेरे पास कॉपीज नहीं ऑर्डर की। आपको सिर्फ ये एक लाइन फेंकनी है कि सर क्या ये जुडिशियल सिस्टम सिर्फ सलमान खान के लिए बनी है जो बिना जजमेंट की कॉपी के, उसको तो आप स्टे दे देंगे और इस गरीब आदमी को नहीं देंगे। तो इसका बहुत उपयोग किया है मैंने। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बिल्कुल बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बढ़िया बढ़िया काम करें ताकि उसका उपयोग मैं गरीबों के लिए भी कर सकूं। सो नेक्स्ट केस है, जब भी आप ऐसे ग्रुप केस लड़ते हो, जैसे कि स्लम डुएलर्स हो गया या डीडीए केसेस हो गए या आरडब्ल्यूए के केसेस हो गए, तो ग्रुप केस में एक बिकॉज ऑफ लॉन्ग टेन्योर ऑफ द केस जनरली इशू आता है कि जो इनका लीडर होता है प्राइम एफिसी और जो ग्रुप ऑफ लीडर होते हैं उनमें यूनिटी में डिफरेंस दिखता है, या कह लो कि इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है, उनकी अपीयरेंस भी अफेक्ट करने लगती है, जो कि व्हिच इज इम्पैक्टिंग यू आल्सो, और उनको भी है ना, कहीं आप इंटरेस्ट लूज कर सकते हो। तो कोई इट्स फॉर ए स्टूडेंट और लॉ स्टूडेंट जो कि इस लाइन में आना चाहते हैं, मैं उसके पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ, इस तरह के केसेस में हाउ यू रिटेन दैट इंटरेस्ट of that group as a unity and how they can actually channelize and still got the case in their favor. Yes. So देखिए ऐसा है, हर चीज की इकोनॉमी बन गई है, ultimately everything has to survive. Yes. And people are fighting for survival only. At the end of the day, it may be thriving survival or it may be poor survival, whatever may be the case, we are all trying to survive. झुग्गी झोपड़ियों के केस में और इन सभी केसेस में मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ। एक तो इसका ये एस्पेक्ट है कि मैं कैसे उनका इंटरेस्ट बनाकर रखूं ताकि वो केस में इंटरेस्टेड रहें। दूसरी बात यह है कि ये केस करते हुए कैसे मैं अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मीट कर पाऊं। देखिए दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी है वह बिना किसी सरकारी मदद के बन नहीं सकती हैं। मैं आपको खुले रूप में बता रहा हूं और मैं चैलेंज करता हूं मुझे कोई गलत प्रूव करे। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी बनने और टूटने का पूरा खेल चलता है जिसमें सरकार, पुलिस, सरकारी अधिकारी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। होता क्या है, कोई सरकारी जगह है, वहां का जो चौकीदार है या जो उसका इमीडिएट ऑफिसर है या जो भी अन्य व्यक्ति, वो वहां पर झुग्गी डालने के पैसे लेते हैं। इसके लिए वो एक प्रधान बना देंगे जो इनका एजेंट बनेगा। 10,000 रुपए जहां जो जैसा बन पाया, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जो बन पाया वो आप लोगों से लेते रहेंगे और उन्हें वहां झुग्गी बनाने देंगे। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद जब वो जगह भर गई और इनकम का सोर्स खत्म हो गया क्योंकि अब तो कोई नई झुग्गी बन नहीं रही है, तो वहां पे डिमोलिशन होएगा, बुलडोजर चलेगा
सब कुछ हट जाएगा, न्यूज के लिए, कोर्ट के लिए, सबके बताने के लिए, देखो जी हमने झुग्गी तोड़ दिया। हाँ, फिर अगले दिन से नया खेल शुरू होगा, लाइए 50,000 रुपए जमा कीजिए और फिर बनाइए। ओके। और ये चक्र साल दर साल चलता रहता है। और इस सब में लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। जिसकी झुग्गी बन रही है उसको इस बात का सुख है कि हाँ जी हमने झुग्गी बना दिया। जब तोड़ रहे हैं तो आपको बहुत सुख है कि हाँ ये सब इलीगली रह रहे थे, इनको तोड़ दिया। कोर्ट्स को दिखाने के लिए, देखिए जी आपने बोला था, ऑर्डर किया था कि इलीगल एनक्रोचमेंट हटाओ, मैंने तोड़ दिया। अल्टीमेटली बेचारा गरीब पिस रहा है, उसको पेमेंट देनी पड़ रही है और करप्शन बढ़ रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डिमोलिशन इज नॉट द सॉल्यूशन, यह समस्या का समाधान नहीं है। और वो सवाल भी जब आपने कहा कि ऐसा क्यों होता है कि वो अपना घर छोड़कर यहां वापस आ गया, हाँ। ये करप्शन भी उसमें शामिल है कि वो क्यों वापस आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये बुलाएगा उसे वापस। हाँ। कि वहां क्या रह रहे हो, किराए पे चढ़ा दो, तुम यहाँ आओ, 20,000 रुपए दो और दोबारा झुग्गी डाल लो। ठीक है, तो ये पूरा खेल पूरी दिल्ली में चल रहा है। और चूंकि मैं खुले प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं कोई सरकारी अधिकारी मुझे आके बताए कि नहीं ऐसा नहीं होता है और मुझे गलत प्रूव करें। इसीलिए मैं कहता हूं कि झुग्गी झोपड़ी का सलूशन आप इस बात को समझने में है कि वो यहां क्यों है और परमानेंट सलूशन देने में है। इस देश में हाउसिंग की इतनी समस्या है, अंग्रेजों ने जब बॉम्बे को इंडस्ट्रियलाइज किया तो उन्होंने चॉल्स बनाए। ये अंग्रेजों की व्यवस्था थी जो अलेजेडली हम पे राज करने के लिए आए थे, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे। उन्होंने ये विचार किया कि जब हम इतनी इंडस्ट्रीज बनाएंगे तो यहां मजदूर काम करने के लिए आएगा। वो कहां रहेगा। मैंने उनकी हाउसिंग की व्यवस्था की, लेकिन मैंने इतना बड़ा शहर बनाया, पूरी दिल्ली बना दी, इतनी बड़ी दिल्ली बनाई कि मुझे यहाँ पे बस स्टैंड पे एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए बहुत सारा लाइट है, लेकिन मेरे यहाँ पे ऐसे ऐसे गांव हैं जिनके पास पढ़ने के लिए लाइट नहीं है। तो क्या मैंने ये नहीं सोचा, मैंने फोर्स नहीं किया कि गांव से आदमी उठ के यहां पर आएगा। और एज अ सरकार, क्या मेरा फेलियर, एज अ सरकार मेरा फेलियर नहीं है कि मैं ये इंश्योर नहीं कर पाया कि जिस व्यक्ति को मैं फोर्स कर रहा हूं कि तुम अपने गांव से उठ के आओ, क्योंकि मैंने तुम्हें वहां सुविधा नहीं है दी है और मैंने अपने सारे रिसोर्सेज इस जगह पर लगाए हैं, तो मैं रहने की व्यवस्था भी नहीं कर पाऊंगा। तो इज दैट नॉट द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट? सो देयरफॉर it's the responsibility of the government to ensure fair housing. Fair housing is what I go ahead and call it, for the reason कि जब आप बड़े बड़े विकास करते हैं तो निश्चय ही बहुत सारे माइग्रेशंस होंगे, उसमें हर तरह के लोग रहने के लिए आएंगे, चाहे उनके लिए। इसीलिए शायद अभी सरकार ने ये पॉलिसी लाई है, रेंट पॉलिसी, ओके, कि ये सिटीज में इस तरह की जगह बनाएंगे जहां पर रेंट पे, लो रेंट पे लोगों को रहने की जगह दें। आशा करता हूं कि वो शुरू हो जल्दी, इससे कुछ रेजोल्यूशन तो मिलेगा ही लोगों को और इस बड़ी समस्या का निजात भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई भी प्रोफेशन बिना मनी के नहीं चल सकता, है ना? एब्सोल्युटली। तो हाउ यू क्रिएटेड दैट मॉडल जिसमें कि आप इस तरह के केसेस भी लड़ पाते हो और फिर प्रॉफिट भी कर पाते हो? मतलब ये एक डिफरेंट यूनिक मॉडल है, आई बिलीव, बिकॉज इट इज वेरी, उनसे कितना ही आपको वो मिलेगा प्रॉफिट, बट स्टिल यू हैव टू मेक योर स्पेस, यू हैव टू अर्न सो दैट इट इज द होल प्रोसेस इज सस्टेनेबल। एब्सोल्युटली। तो ये मॉडल क्या है, मींस हाउ यू डेवलप दैट मॉडल? Yes, so this model has been developed over the period of time. That is first thing to be understood. It is not that कि ये आज अचानक से हो गया है। और एक और बहुत पॉपुलर टर्म है हमारी इसमें जिसका मैं उपयोग करता हूँ, उसे कहा जाता है क्रॉस सब्सिडाइजेशन। Okay. So क्रॉस सब्सिडाइजेशन इज डन इन द मैनर कि हम कुछ मुकदमे ऐसे करते हैं और जिनसे हमें पैसे आते हैं और उसका उपयोग हम बाकी केसेस में करते हैं। मैं कोई भी मुकदमा फ्री में नहीं करता, मेरा पहला प्रिंसिपल है। अगर मेरे पास कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, ये कहने के लिए आता है कि मेरे पास खाने पीने का पैसा नहीं है लेकिन आप मेरा मुकदमा कर दो, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि देखिए जी, मुकदमा लग्जरी है। Okay. अगर आपके पास खाना पीने का पैसा नहीं है, आप प्लीज मेरे से खाना पीना लीजिए और जाइए, मुकदमा मत करिए। मुकदमा करना एक लग्जरी है
उसमें पैसा खर्चा होएगा, आप तभी करिए जब उससे आपको कोई फायदा होना है। इसीलिए मैं फ्री लिटिगेशंस के बिल्कुल खिलाफ हूं। जो मॉडल हमारे देश में था और बहुत हद तक है भी, वो फ्री लिटिगेशंस का है, जिस मॉडल में क्या होता है कि कुछ फॉरेन एजेंसीज या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपको फंड कर रही हैं कि आप झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए केस कीजिए, लेबरर्स के लिए केस कीजिए, और उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, या बहुत सारे ना भी कहें तो पैसे मिलते हैं। और जब आप वो केस उनके लिए करते हैं, इसमें नुकसान क्या होता है कि आप उसके प्रति अपना उत्तरदायित्व रखते हैं। यू फील रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द पर्सन हु पेज यू, राइट। सो द पर्सन, वो झुग्गी ड्वेलर, उसको तो आप कह रहे हैं मैं तुम्हारा कल्याण कर रहा हूं, लेकिन मैं आंसरेबल किसको हो रहा हूं? जिसने मेरे को फंड किया, जिसने मुझे फंड किया। और जो व्यक्ति जिसका मैं मुकदमा लड़ रहा हूं, वो कल को मुझे बोलने के लिए आएगा कि साहब आपने क्या किया, तो मैं तो उसको मुंह उठा के बोल सकता हूं कि मैंने तुझसे 1 रुपया भी लिया है क्या? हाँ। तेरा काम हुआ नहीं हुआ मुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मतलब एक तरह से ओनरशिप, क्योंकि मैंने उसको तो दिखा दिया, जो मेरा फंडर था, कि मैंने ये केस किया, मुझे उसके रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब मैं उससे पैसे ले रहा हूं, चाहे वो 100 रुपए हो या 1000 रुपए हो, वो मुझे कल को कह सकता है कि साहब मैंने आपको 100 रुपया दिया, आपने क्या किया मेरे मुकदमे का? और मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसका काम करके दूंगा, तभी वो 4 लोगों को और कहेगा। तो पहली चीज मैंने ये नियम बनाया कि मैं किसी का भी मुकदमा फ्री में नहीं करूंगा। बिल्कुल मैं कम पैसे ले सकता हूं, लेकिन फ्री में कोई मुकदमा नहीं करूंगा। सेकंड केस जो चीजें हमने करी वो ये था कि हमने लोगों को ग्रुप किया कि आप लोग एज अ ग्रुप इन चीजों को, जैसे कि आप देखें कि हर एक बड़ी इंडस्ट्री का ग्रुप है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है, कंपनीज का एसोसिएशन, लेकिन गरीब आदमी का कोई ग्रुप, क्योंकि वो हमेशा आपस में लड़ रहा है और उसको लड़ा के रखा गया है, तो उसका ग्रुप कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो मैंने ये इस बात के लिए ट्रेनिंग दी लोगों को कि कैसे आप लोग ग्रुप में केसेस कर सकते हैं, और कैसे अगर 100 लोग हैं तो वही 100 लोग अगर 100 रुपए इकट्ठा करें या 1000 रुपए इकट्ठा करें, तो कैसे वो एक बड़ा अमाउंट बन सकता है जो उनके ग्रुप को भी सस्टेन कर सकता है, जो लिटिगेशन को भी सस्टेन कर सकता है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को अन्य फोरम्स के सामने भी लेके जाके रख सकता है। क्योंकि किसी मार्केट का कोई बात चल रही है, सरकार उसके विषय में बात कर रही है, तो मार्केट एसोसिएशन, दुकानदार के पास अपना एसोसिएशन है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन उसी मार्केट में जो पानीपुरी वाला है या जो छोटे मोटे सामान बेचने वाला है, उसका कोई एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि वो एक साथ नहीं खड़े हैं, और उसकी बात नहीं की जाएगी। तो हमने धीरे धीरे ट्रेन किया लोगों को कि वो एसोसिएशंस बनाए और एसोसिएशंस के साथ खड़े रहें। ओके। और इस तरह से हमने उनका लिटिगेशन भी वो फंड कर पाए हैं, और अपने आप को भी बेहतर स्थिति में उन्होंने पाया है। दूसरी चीज ये है, जो आपने कहा, उस मॉडल में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई फंडिंग का मॉडल नहीं है जिसको मैं फंडर को दिखा दूं कि देखो जी मैंने 100 मुकदमे किए, चाहे उस मुकदमे में कुछ नहीं हो, लेकिन मुझे यहां पे ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो रिस्पॉन्सिबल हूं उस व्यक्ति के प्रति। वो मुझे 100 गाली भी देगा अगर मैं उसका काम नहीं करूंगा तो मुझे वो भी सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो आई फील दैट मॉडल गिव मेक्स यू मोर रिस्पॉन्सिबल। एंड देन जो सबसे जरूरी बात है, मैं हमेशा कोर्ट्स को कहता हूं कि आई एम अ पुअर मैन्स लॉयर, बट आई एम नॉट अ पुअर लॉयर। Okay, I am a very smart, very hardworking lawyer. I can go ahead and tackle even the brightest of the mind, even if they are standing for the highest. So when we fight cases for laborers, we have got the best opponents, best of the legal minds as our opponents, and there I cannot perform poorly. Okay, so you have to be very, very hardworking and very, very result oriented, even when you are dealing with the poor people. Yeah, so I always feel that my zenith is, one, to experiment for the poor in the higher courts, not in the lower court. So initially when I started doing cases in the high court and I said I am standing for a poor slum dweller, the court saw me as with a suspicious eye कि ये बोल रहा है ये गरीब आदमी के लिए है, लेकिन ये हाई कोर्ट में खड़ा है और लड़ रहा है, तो ये जरूर झूठ बोल रहा है। ये कैसे हो सकता है कि गरीब आदमी का वकील
हाई कोर्ट में आए और हाई कोर्ट में उसके लिए लड़ाई करे और बोले कि मैं गरीब हूं, क्योंकि हमारा तो सिस्टम ऐसा है कि गरीब हाँ, इस सिस्टम में निचले पायदान पे ही रहेगा, बहुत ऊपर नहीं जा पाएगा। हाँ, ठीक है, तो शुरुआत में कोर्ट ने हमें सस्पिशियस नजरों से देखा। जब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि नहीं, जो बात मैं कह रहा हूं वो सही है, और इसलिए मैंने लोगों को भी इन्वॉल्व करना शुरू किया कि आप आइए। जो क्योंकि एक वकील जो ये इमेज बना रहा है कि मैं बहुत बढ़िया वकील हूं, मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, वो नहीं दिखना चाहेगा कि वो उसके साथ कोई गरीब आदमी चल रहा है, उसके साथ 20 गरीब लोग चल रहे हैं। ओके। तो इसके लिए भी बहुत सारा कॉन्फिडेंस चाहिए किसी एक व्यक्ति को कि नहीं, मैं इनके लिए खड़ा हूं और यही मेरे क्लाइंट्स हैं, और मैं प्राउडली कह रहा हूं कि ये मेरे क्लाइंट्स हैं और इनके लिए मैं पूरी जी जान से लड़ाई करूंगा। ये जब तक मेरे मन में भावना नहीं आएगी कि मैं इनका कल्याण ये नहीं कर रहा हूं कि मैं इनके लिए केस लड़ रहा हूं, ये मेरा कल्याण कर रहे हैं क्योंकि वो मुझे केस दे रहे हैं, क्योंकि वो मुझे केस दे रहे हैं, वो मुझे फीस दे रहे हैं। हम्म, अनटिल एंड अनलेस लीगल सिस्टम में एंड लीगल प्रोफेशनल्स में ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तब तक ये मॉडल बनना मुश्किल है। परंतु मैंने करके दिखाया है दैट दिस मॉडल इज पॉसिबल and you can go ahead and do cases for the people and still survive and thrive. यस। अब इसमें एक ऐसा केस बताइए जिसमें आपको फीस जो है बहुत वेड तरीके से मिला है, मतलब नॉट डायरेक्ट पेमेंट इन टर्म्स ऑफ कैश और मनी, बट कुछ और शेप में मिला है इंस्टेड ऑफ ऐसे बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ होती रहती हैं जिसमें हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो अलग अलग तरह के लोग हैं। मुझे आज भी याद है एक घटना, क्योंकि ये मेरे ऑफिस की घटना है और इसलिए मुझे विशेष रूप से भी याद है क्योंकि एक जर्नलिस्ट उस समय मेरे ऑफिस में बैठे हुए थे जब ये महिला, एक बूढ़ी महिला थी, एक किसान थी जिनका मैं केस कर रहा था और उनका ज़मीन का मुकदमा था और डीडीए उनको अपनी ज़मीन से हटा रही थी। तो मेरे लिए क्योंकि वो गाय पालती थी और वहाँ कुछ मुर्गियाँ थी, तो मेरे लिए कुछ दूध, घी और अंडे लेकर आई कि मेरे पास यही है, आपको इसी में मेरा मुकदमा लड़ना पड़ेगा। तो शायद मैं पहले सुनता था कि ऐसा लोगों के साथ होता था और लोग ऐसा करते थे, लेकिन मैंने ऐसा होते हुए देखा जब मैं बेला स्टेट के किसानों का केस लड़ रहा था। तो वहाँ पर किसान हमेशा कहते थे कि आप कुछ सब्जी ले जाइए हमारे यहाँ से या साग ले जाइए या हम पहुँचा देते हैं आपके घर पे अपने केसेस के लिए। नॉट कि सिर्फ वही देते थे, उनका जो फीस था वो निश्चय ही। और मेरा हमेशा से मानना रहा है और मैंने देखा भी है इसको कि गरीब आदमी अपनी पहुंच से ऊपर उठकर फीस देने की कोशिश करता है कंपेयर टू एक अमीर आदमी। ओके, सो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करेंगे कोई अमीर आदमी, और उसके साथ आपको चीज़ें फिक्स करने में ज़्यादा मुश्किल होएगी। और अगर मैं उसको बहुत सिंपल शब्द में कहूँ तो मुझे लगता है कि गरीब आदमी में अधिक ग्रेटिट्यूड होता है देन दैट ऑफ एनी अदर, बिकॉज फॉर देम द रिलेशनशिप इज कंप्लीटली प्रोफेशनल, but here the relationship becomes completely personal and they give you very high regards and it is reciprocative, I would go ahead and say. So as we discussed so many things, so this law, it is for privileged people or common people? अगर common people के लिए है तो इनको इतनी डिफिकल्टी क्यों होती है टू अचीव? देखिए, समझने की बात यह है कि जब आप ये प्रश्न पूछ रही हैं कि क्या कानून आम आदमी के लिए भी बना है, मैं उस प्रश्न को थोड़ा चेंज करूंगा कि क्या भारत का कानून ओके। प्राइमरीली मुझे ऐसा लगता है और ये मेरा पर्सनल व्यू है कि ये जो कानून डिज़ाइन किया गया था ये एक गुलाम देश के लिए डिज़ाइन किया गया था। पहली चीज़, जहां पर प्रिविलेज्ड आदमी, बड़ा आदमी अंग्रेज था और बाकी सब रूल किए जा रहे थे, और हमारे रूलर्स को ये पता था कि जुल्म करने वाला अगर कोई आदमी है तो वो खुद है। तो अगर सभी केसेस बहुत आसानी से जुल्म करने वालों को जल्दी से और उचित सजा मिल जाए तो सबसे ज्यादा सजा कौन पाएगा? जो प्रिविलेज हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, जो अंग्रेज हैं। तो इसीलिए इस सिस्टम को ऐसा बनाया गया, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें सबसे ज्यादा परेशानी उस व्यक्ति को होती है जो अपने साथ हुए जुर्म की बात कहने जाता है। सो कंप्लेनेंट बिकम्स द बिगेस्ट सफरर।
और उसके बाद अगर जो एक्यूज पर्सन है वो भी गरीब है तो उसकी भी बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ जिसकी चर्चा आज भी हम बहुत अधिक करते हैं, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। ओके। मर्डर की सजा किसी को अगर आप जान से मार दें तो जीवन भर की कैद है, लेकिन अगर आप किसी को गाड़ी से मार दें तो आपको बेल मिल सकती है बहुत आसानी से। पुणे वाला केस ही है, पुणे वाला केस आपने देखा, और अन्य उसमें तो बहुत सारे इंटरप्लेस थे जेजे एक्ट का भी, परंतु मैं मोटर व्हीकल की बात कर रहा हूँ पूरी तरह से। मोटर व्हीकल किसके पास था, गाड़ी किसके पास थी? जो अमीर आदमी है, जो अंग्रेज है यहाँ पे, उसके पास है। उसे पता है कि मैं जाऊंगा, किसी को गलती से लग जाएगी या जानबूझ के भी लग जाएगी, मर जाएगी, तो मैं जेल चला जाऊंगा जीवन भर के लिए। तो इसीलिए बेहतर क्या है कि उसकी सजा को इतना कम कर दो कि अगर मर भी जाए तो मुझे कुछ गड़बड़ ना हो, और उनको दिखाने के लिए मैं दिखा दूंगा कि देखो जी मुझे भी फेस करना पड़ा, मेरे खिलाफ भी केस हुआ। तो पब्लिक सेटिस्फैक्शन पूरी है कि देखो जी, और ये पब्लिक सेटिस्फैक्शन किस बात में, हमारे इंडियन माइंडसेट में या फिर किसी जनरल माइंडसेट में कहा जाए कि आदमी इस बात से दुखी नहीं है कि मैं दुखी हूं, इस बात से खुश है कि दूसरा भी तो दुखी है। तो मैंने केस किया, मुझे रिजल्ट मिला, इसका मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो भी तो फंसा हुआ है। So I think this system was designed not to benefit but to exploit the people, especially the common man. This would require a major revamp. Major revamp. I don't know whether as a society we are ready for that or not, but this would require a major revamp. जो चीज इमीडिएट की जा सकती है वो ये है कि लोग इस फार्स को समझें कि अगर हम इसमें फंसेंगे तो हम बहुत लंबा और बहुत लंबे समय के लिए फंसने वाले हैं। जैसे ही लोग ये डिसाइड करने लग गए कि हम अपना डिस्प्यूट हमारे पुराने सिस्टम से रिजॉल्व कर लेंगे, जो हमारा इंडिजिनस सिस्टम था कि हम आपस में बैठकर अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे। हमारे यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल पंच का सिस्टम था जो गांव में बहुत दिनों तक सरवाइव किया। आज मुझे लग रहा है वो मुश्किल है, परंतु वो उसको रिवाइव किया जा सकता है कि हम अपने गांव के डिस्प्यूट हम अपने गांव में रिजॉल्व कर लेंगे। क्यों नहीं किया जा सकता ये? और जैसे ही ये जुडिशियल सिस्टम दिखेगा कि लोगों ने मुझे अबैंडन करना शुरू कर दिया है, लोग अपना डिस्प्यूट स्वयं रिजॉल्व कर रहे हैं, ये जुडिशियल सिस्टम अपने आप को स्वयं रिफॉर्म करेगा। अभी इसकी प्रिविलेज ये है इस जुडिशियल सिस्टम की, एंड इट्स वेरी सैड कि हम सुनते हैं कि 50 साल जेल में रहने के बाद एक आदमी बोल रहा है कि अच्छा आप दोषी नहीं थे। मेरी जमीन का विवाद हुआ और मेरे पोते और परपोते तक चला जा रहा है और वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, एंड वी हैव नॉर्मलाइज्ड इट। नो अदर सोसाइटी will go ahead and normalize this kind of judicial system. सिविल वॉर हो जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ इस देश में है, और इस देश में भी इसलिए क्योंकि ये गुलाम देश रहा है, यहाँ के लोग गुलाम रहे हैं, तो उनको गुलामी की मानसिकता की आदत है कि हाँ ठीक है बड़े साहब ये कर रहे हैं, मुझे 100 साल भी वेट करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। ये गुलामी की मानसिकता जब तक दूर नहीं होती और लोग अपने हाथ में कमान नहीं लेते कि हाँ हम अपने डिस्प्यूट स्वयं रिजॉल्व करेंगे, हम आपस में बैठकर बात करके शांतिपूर्ण ढंग से इसको रिजॉल्व कर लेंगे, हमें नहीं जाना है जुडिशियल सिस्टम के पास जो मुझे 10 साल 20 साल 50 साल तक फंसा के रखेगा। इमीडिएटली जुडिशियल सिस्टम अपने आप को रिफॉर्म करेगा। जैसे ही लोग अपनी बात रखना शुरू करेंगे, लोग अपनी बात कहना शुरू करेंगे, चीजों में बदलाव आएगा। आज प्रॉब्लम यह है कि हर चीज का सेंटर जुडिशियल सिस्टम बना हुआ है। कहीं कोई डिस्प्यूट हो गया, सरकारों में या व्यक्तियों में, हम सब दौड़कर पहुंच रहे हैं, चलिए जी सुप्रीम कोर्ट, चलिए जी हाई कोर्ट चलते हैं, चलिए जी यहाँ पुलिस के पास चलते हैं। पड़ोसियों में छोटा विवाद जो आपस में बात करके रिजॉल्व हो जाएगा, चलो जी आज हम पुलिस में केस करेंगे। अच्छा पुलिस ने केस करने के लिए भी मुझसे पैसा लिया, ठीक है, लेकिन इस बात का दुख नहीं है, लेकिन मुझे उस बात की खुशी कि उससे भी लेगा, और इसमें हम बहुत प्रसन्न हैं, गुलाम हैं हम लोग, राइट। ठीक है, तो जब तक हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होंगे और इस बात से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक इस सिस्टम में रिफॉर्म नहीं आएगा। बट टू सम इट अप ऑल,
जो आपने पूछा, ये सिस्टम आदमी के अभी तक आम आदमी के बेनिफिट के लिए डिजाइन नहीं है, ये आम आदमी को समझना होगा। आज की डेट पे जहाँ डिलीवरी आपकी 10 मिनट में आती है थ्रू ब्लिंकिट ले लो या कोई भी ऐप ले लो, मिंत्रा ले लो, आपको कपड़े भी घर पे आते हैं, लेकिन लोगों को लॉ की अवेयरनेस आज भी बहुत कम है। सो हाउ टू इम्प्रूव दैट अवेयरनेस? क्या कभी आपने सोचा है एज ए फर्म टू हाउ टू इम्प्रूव दैट अवेयरनेस? कैसे लोगों को एटलीस्ट बेसिक रूल्स तो पता हो जो कि लोगों को पता ही नहीं। जैसे एग्जांपल ले लो कि मास फायरिंग हो रही है कंपनी में, बहुत सारे होते रहते हैं, आईटी फर्म ले लो और किसमें भी, लोगों को पता ही नहीं क्या करना है ना? यस। तो बहुत गैप है, इवन दो वी आर मतलब बहुत लिटरेसी वाइज हायर रेट पे होंगे, बट स्टिल वी डोंट नो मेनी ऑफ द लॉज। एब्सोल्युटली। देखिए, मजेदार बात ये होगी कि शायद वकीलों को भी सभी कानून नहीं पता होंगे। ठीक है, और इसीलिए शायद हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं कि इस कानून के एक्सपर्ट हैं, इस कानून के एक्सपर्ट हैं, इस कानून के एक्सपर्ट्स हैं। तो एक तो ये कि ये शायद संभव ही नहीं है कि सभी कानून सभी को पता हों। Okay. परंतु कुछ बेसिक कानून जो सभी को पता होने चाहिए, उसकी अवेयरनेस, हमारे यहाँ कानून में एक प्रिंसिपल है कि कोई भी व्यक्ति ये प्ली नहीं ले सकता कि मुझे कानून के बारे में नहीं पता था। ठीक है, कि ये कानून है, ये मुझे नहीं पता था। उसका बेसिस ये है कि जब सरकारें कानून बनाएंगी या फिर कानून बन के आएंगे तो उसका लोगों में इतना प्रचार प्रसार होगा कि सभी को ये बात मालूम चलेगी, जो कि अभी नहीं हो रही है। तो निश्चय ही सरकार को भी ये चाहिए कि जो भी कानून बन रहे हैं उनका उचित प्रचार प्रसार हो और लोगों के पास उनकी अवेयरनेस हो। दूसरा, थोड़ी एफर्ट लोगों की तरफ से भी होनी चाहिए कि हम जिस समाज में रह रहे हैं या जिस जगह रह रहे हैं उसके क्या कानून है, कैसे ये गवर्न हो रहा है, उसके बारे में जानकारी लें। और तीसरा, ये बहुत जरूरी है दैट यू हैव अ लॉयर हु कैन गो अहेड एंड काउंसिल यू। एंड आई ऑलवेज टेल पीपल कि वकील से कभी फ्री में एडवाइस मत लीजिए। रादर ये बात सभी के लिए तय होती है, बट मोर सो इन द लीगल फील्ड। आप जब भी वकील से सलाह लें, आप अपनी कंसल्टेशन की फीस तय कर ले, अपनी कंसल्टेशन की फीस दें और तब अपनी कंसल्टेशंस करें। उसका फायदा आपको क्या होएगा कि वकील को अपनी कंसल्टेशन की फीस मिल गई तो उसके मन में ये नहीं रहेगा कि अच्छा ठीक है, इसको कंसल्टेशन तो मैं फ्री में दे रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसा बताता हूं कि एक केस मेरे पास लेकर आ जाए, तब मैं वसूल कर लूंगा इससे, क्योंकि नथिंग इज फ्री, यू नो दैट। तो जब भी आप कंसल्टेशन फीस देकर कोई एडवाइस लेंगे, दैट विल बी मच मोर फ्री, मच फेयर एन एडवाइस। सेकेंड, फॉर द पीपल, बिकॉज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि लोगों में एक ऐसी अवेयरनेस हो, लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की गई है और जहां पर आपको मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है। चाहे या ना चाहे आप उनकी सर्विसेज लें या नहीं लें, लेकिन जब आप कोई कानूनी एडवाइस लेने जा रहे हैं, चाहे किसी भी वकील से लें, इट इज एडवाइजेबल कि आप एक बार लीगल एड अथॉरिटी में अवश्य जाएं और वहां भी कंसल्टेशन कर लें। लीगल एड अथॉरिटी एक साइट है या कैसे? नहीं, लीगल एड अथॉरिटी हमारे देश में एक कानून है, ठीक है, उसको कहा जाता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जो ये कहता है कि किन लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। तो इसकी अथॉरिटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हैं, तालुका लेवल पे भी हैं, हाई कोर्ट लेवल पे भी हैं और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी हैं। और इन अथॉरिटीज के हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब आप जाएंगे जिस भी कोर्ट में, तो वहां पे उनके ऑफिसेज होते हैं। आप पता करेंगे कि लीगल एड अथॉरिटी का ऑफिस कहाँ पे है और वहां जाकर, वहां पर वकील भी बैठते हैं, उनके इंचार्जेस कोई जज होते हैं, तो उनसे जाकर आप इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस ले सकते हैं। और वो आपको जो एडवाइस मिलेगी वो कई बार बहुत बेहतर एडवाइस होगी, न्यूट्रल एडवाइस होगी, क्योंकि उनको ये नहीं है कि आप हमारे पास आ जाएं और हम आपका केस फ्री में करें इसीलिए आप आ जाएं। वो आपको इंडिपेंडेंट एडवाइस दे सकते हैं, तो इसका उपयोग भी लोगों के द्वारा किया जा सकता है। तो निश्चय ही बहुत सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं। जो दूसरी बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं अब ये समय आ गया है कि इंस्टेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, इट्स द पीपल हु शुड कम इन द सेंटर।
ओके। ओके, लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। अभी तक मैं ऐसा बहुत लोगों को पॉपुलरली कहता हूँ कि अभी जो है रील्स चल रहे हैं जजेस के, कि जज क्या कह रहा है, लेकिन रील्स चलने चाहिए क्लाइंट्स के, क्लाइंट क्या कह रहा है? कि क्लाइंट क्या कह रहा है, आम आदमी क्या कह रहा है, उसकी क्या स्थिति है, वो यहाँ कितने सालों से फंसा हुआ है। जजेस तो 1 मिनट में हीरो बन जाएंगे किसी को कि अरे ये डीएम तुम सही से हाथ जोड़ के नहीं खड़े हो, तुम टाई पहन के नहीं आए, चलो तुम्हें अभी सस्पेंड कर देता हूँ। लोगों को बहुत मजा आ रहा है कि देखिए जी, क्यों? क्योंकि लोग ऑब्वियस सी बात है उस सिस्टम से के दबाए हुए हैं, और जब वो देखते हैं कि उस सिस्टम का कोई आदमी डांट खा रहा है कहीं पर, या उसको कहीं पे झाड़ पड़ रही है, तो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन इसमें क्या आम आदमी का फायदा हो रहा है? तो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में धीरे धीरे अब ये बात आएगी, और मेरे ख्याल से एज अ मीडिया पर्सन and all persons who are doing these kinds of podcasts and bringing people, they should speak more to the people. जो लिटिगेंट है वो इस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन उसको सबसे साइड में छोड़ दिया जाता है। बिकॉज़ जर्नी तो उसी की है। जर्नी उसी की है, और वो फंड कर रहा है सब कुछ। हाँ, ही इज द बॉस। ही इज द बॉस। वो पे कर रहा है जिसकी वजह से लॉयर आ पा रहे हैं, ऑपोजिट लॉयर आ रहा है, वो पे कर रहा है, वो कोर्ट फीस कर रहा है जिसकी वजह से कोर्ट्स खड़ी है और जुडिशियल सिस्टम खड़ा है। लेकिन उसको सबसे दरकिनार किया गया है। बात किसकी हो रही है? जजेस की बात हो रही है, लॉयर्स की बात हो रही है, कोर्ट में काम करने वाले अधिकारियों की बात हो रही है। लेकिन उस आदमी की जो याचिका करता है, जो ये केस लेकर आया है और जो आप सबको फंड कर रहा है, उसकी कहीं कोई बात नहीं हो रही है, उसकी सफरिंग की कोई बात नहीं हो रही है। इस बात पे हम बहुत आसानी से कह दे रहे हैं कि अच्छा ये 25 साल पुराना केस है, इसको थोड़ा जल्दी सुन लेंगे। क्या हमको शर्म नहीं आती ऐसी बात कहते हुए या सोचते हुए? मैं वाकई कह रहा हूं, मुझे बहुत शर्म आती है कि हम किसी को ये कहने के लिए जो डिस्प्यूट 5 मिनट में रिजॉल्व, और हमने, क्योंकि मैं मधुबनी के एक छोटे से गांव से आता हूं, मेरा घर मिथिला प्रांत में मधुबनी के पट्टी टोल गांव है, एक बहुत छोटा सा, वहां से आता हूं। और कहीं ना कहीं उस गांव में पुरानी परंपराएं बची हुई थी, इसीलिए पार्टीशन, आप एक देखिए आज के डेट में फैमिलीज में बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। हाँ, राइट। पार्टीशन के डिस्प्यूट्स कोर्ट में सालों साल, कई कई 100 साल तक चल रहे हैं। मैं लिटरली कह रहा हूँ, 100 सालों से चल रहे हैं। पटियाला के महाराज का आज तक चल रहा है पार्टीशन सूट। और मैंने देखा है कि कितने बड़े बड़े पार्टीशंस, हजारों हजार बीघे जमीन वाले पार्टीशंस 1 घंटे में, 2 घंटे में आसानी से 5 लोग मिलकर कर दे रहे हैं। तो चूंकि हमने अपने इंडिजिनस सिस्टम्स को छोड़ दिया, हमारे यहाँ वो पंच सिस्टम होता था कि 5 लोग आपने डिसाइड किए, और वो 5 लोग जो डिसाइड कर देंगे, दैट इज फुल एंड फाइनल among everybody. But today we want to dispute everything. And somehow we are enjoying that. And we are enjoying that. So because we enjoy the plight of others, not our own plight. Plight, yeah. We are not worried about our own plight. We are happy about somebody else's plight. Okay. So that is what the system is exploiting. एक अजय लेमन ले लो मुझे, और मुझे कोई केस अपना लड़ना है। सो इफ आई एम गोइंग टू ए लॉयर, व्हाट आर द फ्यू थिंग्स आई शुड सी? जैसे देखो डॉक्टर्स में क्या होता है, एग्जांपल मैं बता रही हूँ, मैंने एक सेशन लिया, मेडिसिन लिया, मुझे आराम आया, तो मुझे पता चल गया कि अच्छा ये सही डॉक्टर है, इन्हीं के पास जाना चाहिए। पर लॉयर में क्या करें? क्योंकि हमारी तो लॉयर जो जर्नी है टू गेट दैट, टू सी द आउटकम, वो बहुत लंबा है ना? Absolutely agree. तो हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट पर्सन? बिकॉज हर किसी में राइट पर्सन या राइट लॉयर ढूंढना होता है। तो आपके हिसाब से 4-5 टिप्स हैं जिससे हमें देखना चाहिए? Yes, absolutely. That's a very good question. क्योंकि हमारी उसमें कोई इस बात का ये नहीं है कि कैसे मैं एसेस करूं कि ये किस विषय का लॉयर है। हाँ, राइट। ठीक है, या इसका कितना एक्सपीरियंस है, या ये मेरे केस के लिए अच्छा है या नहीं है। हाँ, ठीक है, पहली बार जब हम एज आम आदमी में कहूँ, जब किसी लॉयर के पास जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी जान पहचान में किसी की जानकारी का होता है। राइट, यही होता है। ठीक है, क्योंकि जनरली हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में मैं ऑनलाइन पढ़ूं या ऑनलाइन जानूं, वो व्यक्ति मेरे कंट्रोल में रहेगा या नहीं रहेगा, मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, मेरे पैसों की वैल्यू करेगा या नहीं करेगा। तो ये बहुत सारे डाउट्स रहते हैं।
और इसीलिए पहली बार जो लॉयर्स हमें मिलते हैं वो हमारी जानकारी से ही या किसी न किसी के थ्रू मिलते हैं। जो पहली चीज मैंने कही वो मैंने दोबारा रिपीट करूंगा, ऑलवेज गो टू द लॉयर फॉर अ कंसल्टेशन फर्स्ट। Okay. Don't take your case. You go, consult them, pay them consultation fees, and have a consultation. So without file, they You can- entertain consultation. Yes, they can entertain. They can have the. You can take the file. I'm saying, don't take the case. मतलब आप हाँ, उनसे don't कहिए have case. कि मैं सिर्फ अभी कंसल्टेशन के लिए आया हूँ और मैं आपको कंसल्टेशन की ही फीस दूंगा, मुझे अभी केस नहीं करना है या मैं उसके विषय में विचार करूंगा, तो यू विल गो अहेड एंड गेट। और अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो हैव 1 or 2 पैरेलल कंसल्टेशंस दैट विल गो अहेड एंड गिव यू अ बेटर आइडिया। ठीक है, आपके पास कुछ कंपेयर करने के लिए होएगा। ऑब्वियसली यू गॉट गूगल एंड अदर थिंग्स विद विच यू कैन गो अहेड एंड कंपेयर, बट दैट इज नॉट समथिंग विच आई वुड एडवाइस, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमारे देश में कानून इतने सारे हैं और इतने सारे उसके एस्पेक्ट्स हैं कि सिर्फ किताबों को देखकर, जो कि आपको एआई या अन्य सब चीजें इंटरनेट पे बताएंगी, वो सब किताबें देखकर बताएंगी। लेकिन किताबों से आगे भी बहुत कुछ है इस देश में, जो कि आपको एआई या आईटी टूल्स नहीं बता सकते। तो इसलिए पूरी तरह से उन पे रिलाई करना उचित नहीं है, परंतु निश्चय ही आपको कुछ ना कुछ जानकारी वो दे सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, ऑलवेज कंसल्ट अ लॉयर, हैव अ पेड कंसल्टेशन। ओके। सेकंड, सी, आप सोचेंगे कि और ये कई बार लोग बोलते हैं कि ऐसा है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तुम जेठमलानी कर लो। ठीक है, बट कैन यू हायर जेठमलानी डायरेक्टली? Obviously not. You need to have your own lawyer who would then go ahead and speak to a senior lawyer, because senior lawyers, as a matter of fact, cannot be engaged directly by a client. Okay, so that is something which is to be understood. I would suggest have a lawyer who's not very well experienced, but somewhere in the mid, 5 years to 10 years of experience, जिसके पास बहुत अधिक मुकदमे ना हो, ठीक है, और जो आपको समय दे सके, ओके, जो आपकी बात सुन सके, और वो व्यक्ति फिर उनको बोले कि आपको अगर किसी सीनियर को भी हायर करना है तो आप कीजिए। ओके, सो इट इज ऑलवेज आइडियल टू हैव अ लॉयर हु इज हैविंग 5, 10, 15 years of experience, so that you can one have somebody who can hear you always and who can take you to places. अगर मुझे किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत है तो वो व्यक्ति मुझे ले जा सकता है। Okay. ठीक है, and he would have a better control than that of anybody telling me anything. ठीक है, तो that is the other way to go ahead and do it. Third is to be a little bit vigilant, as I would say. And fourth is, again, that I told you, it is always advisable to go to the legal aid authority. Like all women, हर महिला को वहां पे फ्री लीगल एड मिलेगा। अच्छा, आपको फ्री लॉयर्स वहां से दिए जाएंगे। दिल्ली में ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। कोई भी व्यक्ति जेल में है उसको ये व्यवस्था मिलेगी। सीनियर सिटीजन्स को ये व्यवस्था मिलेगी, ट्रांसजेंडर्स को ये व्यवस्था मिलेगी, माइनर्स को ये व्यवस्था मिलेगी, बिलो पॉवर्टी लाइन को ये व्यवस्था मिलेगी। और ये व्यवस्था बहुत लिबरल है, ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत स्ट्रिक्ट टेस्ट है। अगर आप पहली बार कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं तो आप निश्चय ही कंसल्टेशन तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई आपके ऊपर रोक नहीं है। तो लीगल एड अथॉरिटीज में आप जाएं, और वहां से थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको जाना पड़ेगा, शायद हर जगह फोन या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बट अगर आपको अपने नुकसान से बचना है कि आप किसी, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास यहाँ पर अलग सोल्यूशन है। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें एक ही समस्या के 100 अलग समाधान हो सकते हैं, और आपको क्या फिट करेगा ये आपको कंसल्टेशंस के बाद ही पता चल पाएगा। तो इसीलिए एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेशन और फ्री कंसल्टेशन तो आप लीगल एड अथॉरिटी से ले ही सकते हैं। इंडिपेंडेंट लॉयर से आप हमेशा पेड कंसल्टेशंस लें, ये मेरा ओपिनियन है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अब तो एंड तक ही आ रहे हैं, तो आप अपने करंट कंपनी और उसके बारे में बताना चाहेंगे, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप काम करना चाह रहे हैं, अपकमिंग व्हिच आई वांट टू डिस्कस अबाउट योर न्यू प्लान्स। हाउ
तो ये मेरी फर्म है, इसका नाम है कॉर्पस जूरिस इंडिया, और इसका काम प्राइमरीली है इफेक्टिव लीगल रिप्रेजेंटेशन देना, ओके even to the poorest of the poor. Poorest of the poor I added just to go ahead and say that there is no restriction कि हम किसके लिए लड़ेंगे और कि हम इनके लिए नहीं लड़ेंगे. ओके, मेरा काम है इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन देना और प्राइमरीली हायर कोर्ट्स में देना. ओके, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऑल हाई कोर्ट्स इन द कंट्री एंड द सुप्रीम कोर्ट. आई वांट दैट पीपल, ये सारे सिस्टम्स अभी तक सिर्फ और सिर्फ बड़े लोग या अमीर लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे. गरीब आदमी को यहाँ पर जाने की, एक तरह से कहें कि एक्सेस नहीं था या इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जो धीरे धीरे बदल रहा है अभी. हाँ, right. ठीक है, और लोग सुप्रीम कोर्ट्स और हायर कोर्ट्स तक पहुंच पा रहे हैं. हमें एक ऐसी टीम और एक ऐसी व्यवस्था बनानी है और ऐसे लीगल प्रोफेशनल्स बनाने हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे देश के विभिन्न लॉ स्कूल से बच्चे इंटर्नशिप करने आते हैं, और उनका बहुत अहम योगदान होता है इस ऑफिस को चलाने में. क्योंकि जब मैं अपनी कॉस्ट लो कर रहा हूँ किसी व्यक्ति के लिए, तो उस समय पर जो स्टूडेंट हमारे यहाँ आ रहा है उसको बहुत सारा काम करने को मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड टू एंड, उस क्लाइंट से बात करने का, उसके लिए थाने जाने का, या फिर अलग अलग जगहों पर जाकर उसका रिप्रेजेंटेशन देने का, उसके लिए पिटिशन ड्राफ्ट करने का, और कई मौकों पर उनके पिटिशन आर्ग्यू करने का भी. ओके, तो इससे क्या हो रहा है कि वो बच्चा पहले से ट्रेन हो जा रहा है और उसको इस सब की कला भी आ जा रही है कि किसी मुकदमे को सड़क से कोर्ट तक कैसे ले जाया जाता है, क्या क्या प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और कैसे इसको इफेक्टिव किया जा सकता है. I can proudly say that at least 10,000 interns have interned from our office in the last 10 years that we've been operating, and many of them have become independent lawyers across the country and are having a very good practice. That's great. So that is the way we go ahead and train the people. The other thing that I want to do, and we've discussed it, is also that the client should be brought into the center. The litigant should be brought into center of this entire thing. Till now, it's the judicial systems or the judicial officers or other persons who are in the limelight. It is the litigant who should be in the limelight, and it is him or her who should be heard first, and that space should be given. And that only can go ahead and transform this entire system, which we are talking about. In a way, it will be indirectly creating a genre where people can actually understand the cases, figure out your rights to know. Absolutely. So, what is your suggestion for a new law student who just had completed all the studies, and now he or she just want to look for the right genre or right pathways to choose from? Because example in engineering, people will always go for CS. Yeah. So similarly, law has also, there are many examples जिसमें के 2-3 ही section है where people really look up to कि ऐसे lawyers बनने हैं, है ना? But your case is totally different. It's the model is for common people. You are serving poorest of poor, है ना? It's just a platform where everyone can come and take their when they had in past also they had taken the justice. So what is your advice to those students? So for law students, my advice is, आप ये शुरू में मत विचार कर लीजिए कि मुझे क्या बनना है. पहली चीज, आप एक्सप्लोर कीजिए. 2 तरह के लॉ कोर्सेज हैं इस देश में, 3 साल का जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, या 5 साल का जो 12th के बाद होता है. तो आपको 3 साल और 5 साल का समय मिल रहा है. इस समय में आप अपने हर सेमेस्टर में किसी अन्य तरह के, अलग अलग तरह के लॉयर्स या लॉ ऑफिसेज या कॉर्पोरेट ऑफिसेज या एनजीओस, इन सब में इंटर्नशिप करके देखिए और समझिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है और आपको किस में मज़ा आ रहा है, क्या करने में आपको अच्छा लग रहा है. क्या आपको एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में इंटर्नशिप करने के दौरान आप देख पाएंगे कि कल को जब मैं वकील बनूंगी तो वो वकील कैसे काम कर रहा है, और उसके बाद मेरी लाइफ में अगर मैं सीनियर पार्टनर बना तो मेरी क्या स्थिति होएगी, या अन्य जगहों पर
इसी प्रकार से। तो आप सभी लोगों को देख पाएंगे कि अगर मैं ये रास्ता चुनता हूं तो ये चीजें मेरे सामने आ सकती हैं। हाँ, राइट। और ये एवेन्यूज हैं। तो आप इस तरह से कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में, इंडिपेंडेंट लॉयर्स के पास, एनजीओज के पास, बड़ी लॉ फर्म्स, छोटी लॉ फर्म्स, इन सबको आप एक्सप्लोर कीजिए जो समय आपको मिलता है। दैट विल गो अहेड एंड हेल्प यू मेक योर डिसीजन एज टू व्हाट डू यू वांट टू गो अहेड एंड डू। आप लॉयरिंग में आना चाहते हैं अगर, तो इस बात को मान के चलिए कि सबसे पहले आपके समय का कोई शेड्यूल नहीं होएगा। कोई व्यक्ति अगर आपके पास आ रहा है, और मेरे साथ ऐसा प्रैक्टिकली हुआ है और कई बार हुआ है, कि आप घर जा रहे हैं, रात को 11 बज चुके हैं और आपके पास कोई आदमी आएगा कि साहब कल मेरा घर टूटने वाला है, या कल मेरे इस भाई को फांसी होने वाली है, या वो जेल जाने वाला है। आप उसे ये नहीं कह सकते कि कल आना। आपको रात में ही काम करना पड़ेगा वो, और रात भर जाग के काम करना पड़ेगा। लॉयरिंग में आने के लिए आपके पास कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारा पढ़ना लिखना है, बहुत सारा घूमना भी हो सकता है, बहुत सारी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, आपको बहुत सोशल रहना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, और बहुत विभिन्न प्रकार की इंटरेक्शंस करनी पड़ेंगी। तो दैट इज समथिंग टू बी सीन। वो आप सब चीजें देखिए सबसे पहले, और तब इस बात पर विचार कीजिए कि हाँ मैं किस रास्ते जाना चाहता हूं या चाहती हूं। ओके। हो सके तो जजेस के पास भी, और वो अब इस देश में होता है, जुडिशियल इंटर्नशिप भी होती है। अब जो लोग चाहते हैं कि हम जज बन जाएं, तो वो वहां इंटर्नशिप करके देखें, उनसे बात करके देखें, और उनके पास जाकर देखें कि उनका काम कैसा है, ये रिग्रेट करने से पहले। और मेरे पास ऐसे कई मेरे जूनियर्स जो अभी जजेस बन गए हैं, वो बोलते हैं कि सर हमने तो सोचा था ऐसा होगा, लेकिन अब ये जज बन गए हैं, और कई ने छोड़ दिया है अपनी जुडिशियल जॉब, जो लोगों के लिए कविटेड जॉब है कि हाँ हम जज बनना चाहते हैं। कई लोग बनकर छोड़ चुके हैं कि हमें तो मजा नहीं आ रहा। तो उस सब स्थिति से बचने के लिए सबसे जरूरी ये बात है कि आप सबसे पहले जो आपके पास समय है, उस समय का उपयोग करते हुए जितनी डाइवर्स जगहों पर इंटर्नशिप पॉसिबल है वो आप करके देखें। अब मेरा नेक्स्ट जो पूछना था आपको वो ये था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो पान वाले होते हैं, रात को मैगी चाय, जो कि हमारी डेली की नीड्स है, चाहे जितने बजे चाहे वो हमें चाय चाहिए, है ना, तो इनके लिए भी क्या लॉ है? क्योंकि उनके भी तो डिमोलिशन में पहला तो उन्हीं की दुकान हट जाती है। एंड मैंने ये केसेस भी देखे हैं कि यहाँ दुकान टूट रही है, विद इन 2 days, नो मोर डेज, वहाँ बनना भी स्टार्ट हो जाता है। सो क्या मतलब, why is this process and how you see as a senior lawyer? सी एज अ हम सबके लिए आज के समय में, और कहीं नहीं तो कम से कम रील्स में तो हर जगह, हर दूसरी तीसरी रील किसी स्ट्रीट वेंडर या किसी भोजन या किसी खाने की वस्तु की है। हम वो तो बहुत अच्छे से देख लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इसके विषय में क्या कानून है। तो 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक कानून बना है इस देश में, जिसका नाम है स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014। पूरा नाम मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 2014 का यह एक्ट है। नाउ स्ट्रीट वेंडिंग भारत में एक पौराणिक समय से आ रही परंपरा है। हमारे यहाँ व्यापार उसी तरह से होता था। अब देखिए, अगर पुराने समय को याद करेंगे तो सुनार भी आपके घर पर आता था, फल बेचने वाला भी आपके घर पे आता था, सब्जी बेचने वाले भी आपके घर पर आते थे, कालीन बेचने वाले भी आपके घर पे आते थे, कपड़े बेचने वाले भी आपके घर पे आते थे। तो ये जो होम डिलीवरी सर्विस है, उसका एडवांस स्टेज हमारे देश में पहले से मौजूद था। राइट। ओके, विच वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। जब अंग्रेज इस देश में आए तो उन्होंने देखा यहाँ तो बिजनेस करने का सिस्टम ही पूरी तरह से अलग है, यहाँ तो सब कुछ घर पे पहुंच जा रहा है। तो यहाँ तो हमारा व्यापारी व्यापारी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबका 1-on-1 रिलेशनशिप है उसके साथ। व्यापारी के साथ वो व्यापारी सबको जानता है, आपके घर में जानता है कि कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, और वो किसके लिए क्या लेके जाना है, वो उसको सब पता है। तो उन्होंने सोचा इस तरह से तो हम अपना व्यापार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ अपना सामान बेचना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि बिना लाइसेंस के कोई कुछ नहीं बेच पाएगा। इवन तो आज की डेट पे इवन मोमो वाला हो या चाय वाला, उसको भी लाइसेंस चाहिए। उस समय पे जब अंग्रेज आए, तो उन्होंने सारा ये सिस्टम किया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापार बिना लाइसेंस के नहीं होएगा। इसका मतलब क्या था, जो इंडियन बिजनेसमैन था, जो इंडियन व्यक्ति व्यापार करने वाला व्यापारी था, उसका व्यापार पूरी तरह से इलीगल हो गया। और सिर्फ वही व्यक्ति जिसने लाइसेंस लिया
जो अंग्रेज अंग्रेज को ही लाइसेंस देगा सबसे पहले, या उसको जो उसको मोटी कमीशन देगा सिर्फ उसी को लाइसेंस देगा। इस तरह से जो भारत का मूल व्यापारी था, बड़ा या छोटा, चाहे बड़ा व्यापारी हो छोटा व्यापारी हो, सबके काम करने का तरीका भारत में यही था प्राइमरीली। तो वो सबको इलीगल कर दिया। लेकिन जो मैंने बात कही कि ये सोचना पड़ेगा कि वो यहाँ पे क्यों, लेकिन वो व्यापार तो चलता रहा, लेकिन सरकार की नजर में हमेशा से वो इलीगल रहा। वो कभी फॉर्मलाइज नहीं हो पाया। और इसीलिए हमने देखा कि हमारे शहर बनते गए, लेकिन स्ट्रीट वेंडिंग क्योंकि वो हमारा बेसिक नेचर था, वो चलता रहा। लेकिन हमने देखा किस नजर से उसको, सरकार की नजर से देखा कि इलीगल है। इसीलिए हम देखते हैं, हमेशा से देखते आए कि भैया निगम की गाड़ी आ रही है और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लग गए कि भागो भागो भागो, निगम की गाड़ी आ गई। वो कोई इलीगल काम कर रहा है क्या? वो फल बेच रहा है तो। लेकिन चूंकि अंग्रेज ने एक कानून बनाया कि व्यापार सिर्फ वही करेगा जिसको अंग्रेज लाइसेंस देगा, ठीक है, इसीलिए वो इलीगैलिटी अभी तक चली आ रही थी, उसको हमने ठीक नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रियलाइज किया कि देखिए ये हमारा बेसिक नेचर है, इसको हमारे जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उन्होंने इलीगल करार दिया, आप प्लीज इसको रेगुलेट करिए। ये तो हमारे समाज की एक सच्चाई है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि इलीगल है। तो इसीलिए आप इसको लीगलाइज कीजिए। इसीलिए 2007 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक स्कीम बनी थी। उसके बाद 2009 में एक स्कीम बनी इनको रेगुलेट करने के लिए। और इस सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को कह रही थी कि आप प्लीज इनके लिए कानून बनाइए, अच्छा, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। और वो बार बार सरकार को कहती थी कि आप बनाइए बनाइए। और 2000 मतलब इनफैक्ट 1985 से कहते 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 जब बार बार कहने के बाद भी नहीं आया, तो इसीलिए 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्कीम बनाई, फिर 9 में बनाई। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है कि हम कानून बनाए, आपको हमने बार बार बोला है कि आप प्लीज करिए। तो उन्होंने क्या किया, 9/9/2013 को सुप्रीम कोर्ट इस बात से पूरी तरह से ऊब गया कि हमने आपको बार बार कहा कि इसके लिए कानून बनाइए, कानून बनाइए, आप नहीं बना रहे, तो हम एक ऐसा आदेश पास कर रहे हैं जिसके बाद आप खुद ही बना देंगे कानून। उन्होंने कहा 9/9/2013 को महाराष्ट्र एकता हॉकर्स में जजमेंट आया कि देश में कहीं भी जो भी स्ट्रीट वेंडर है उसको कोई नहीं हाथ लगाएगा जब तक आप इसके लिए कानून नहीं बना लेते। अभी सबके हाथ पैर बंद गए कि भैया इसको पास तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, किसी स्ट्रीट वेंडर को हाथ, तो पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। तब जाकर 2014 में कानून बन के आया। ओके, स्ट्रीट वेंडर्स का कानून कैसा है? बहुत सिंपल सा कानून है। वो कहता है कि हर एक एरिया में, हर एक म्युनिसिपल बॉडी में एक टाउन वेंडिंग कमेटी होगी। टाउन वेंडिंग कमेटी, टाउन वेंडिंग कमेटी हर एक एरिया में अपने यहाँ पे सर्वे करेगी कि कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं यहाँ पर, और उसके हिसाब से उनको बिठाने का काम करेगी। ठीक है, कि हमारे यहाँ पे इस मार्केट में चलो 50 बैठते हैं, लेकिन हमारे पास जगह 20 की है, तो 20 यहाँ बैठेंगे, बाकी को हम दूसरा मार्केट देंगे। इसे कहते हैं वेंडिंग प्लान। तो हर एक एरिया का उन्हें वेंडिंग प्लान बनाना है म्युनिसिपल अथॉरिटी को, और उसके हिसाब से लोग आपको सेट कर देंगे कि, और उनको अथॉरिटी दे दीजिए कि भैया आपको, आपकी ये 20 लोगों का ये जगह है, आपको सुबह आना है, शाम को चले जाना है, और इतने ही लोग लगेंगे, उसके अलावा हम किसी को नहीं लगने देंगे। ये कानून है। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि इतने सालों से जो ये इलीगैलिटी चली आ रही है, जो कि समाज की एक रियलिटी थी, और अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों हमारे देश में सच बोलने में इतनी समस्या क्यों होती है लोगों को। जो स्ट्रीट वेंडर है, क्योंकि वो इतने समय से इलीगल था, तो पुलिस वाला उससे इलीगल पैसा वसूल करता था, एमसीडी वाला या म्युनिसिपल अथॉरिटी वाला उससे इलीगल पैसा वसूल करता था। अब जैसे ये रेगुलेट हो जाएगा कि यहाँ 10 लोग भी बैठेंगे और उनके पास ये लाइसेंस है, तो वो तो कल को कहेगा कि मेरे पास तो लाइसेंस है, मैं क्यों तुम्हें पैसा दूं। पर ये चीज क्या स्ट्रीट वेंडर को पता है? हाँ, बात ये है कि स्ट्रीट वेंडर को तो पता है, लेकिन उसके लाइसेंस आज तक दिए नहीं गए। 2014 में एक कानून आया, कोई देश का ऐसा कोना नहीं है जहां पर ये स्ट्रीट वेंडिंग प्लान लागू हो गया हो कि हाँ जी इस एरिया के लिए हमने स्ट्रीट वेंडिंग प्लान बना दिया, जो कि टाइम लिमिट था 6 महीना 2014 में। ओके ओके। और वो इसीलिए नहीं बन रहा है, इसके लिए, इसीलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री को क्लियरली ये कहना चाहता हूं कि आप प्लीज स्ट्रीट वेंडर्स को मूर्ख बनाना बंद कीजिए।
आप कहते हैं मैं आपको लोन दे रहा हूं, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री हर एक चाय वाले को, हर एक स्ट्रीट वेंडर को लोन दे रहा है, लेकिन क्या उस लोन देने वाले व्यक्ति को आपने इंश्योर किया कि वो लोन लेके अपना काम शांतिपूर्ण ढंग से कर पाएगा? वो आपसे लोन ले लेगा 10,000 रुपए का, कल को आप उसको 30,000 रुपए का लोन दे दो और कल को एक बुलडोजर आके उसकी रेडी तोड़ दे। तो क्यों आपने ऐसी व्यवस्था नहीं की सबसे पहले कि जिसको मैं लोन दे रहा हूं उसको कोई परेशान नहीं करेगा, और अगर कोई परेशान करेगा तो प्रधानमंत्री उसकी जिम्मेदारी लेगा। जब आप लोन देने में अपना नाम डाल सकते हो कि पीएम स्वनिधि, तो क्यों नहीं पीएम सुरक्षा भी कर सकते हो कि पीएम स्वनिधि के साथ मिलेगी पीएम सुरक्षा, पीएम एक्शन लेगा अगर किसी स्ट्रीट वेंडर को, पीएम स्वनिधि वाले किसी स्ट्रीट वेंडर को आपने हाथ लगाया। तो ये सब सिर्फ कागजों में है, अनफॉर्चुनेटली इसका कानून है और इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोग केसेस लड़ रहे हैं विभिन्न स्थानों पर, और स्ट्रीट वेंडर्स भी जागरूक हो रहे हैं। परंतु हमारा कॉलोनियल सिस्टम जो है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और ये धीरे धीरे दूर होंगी जैसे जैसे व्यक्ति मुखर होएगा, अवेयरनेस आएगी, लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करेंगे, वैसे वैसे इसमें लोगों के लिए बेहतरी आएगी और लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे। सो आज के एपिसोड में, जहाँ इससे पहले मेरा व्यू था कि लॉ इज नॉट फॉर कॉमन मैन, उसमें लड़ने के लिए बहुत हिम्मत तो चाहिए और पैसे तो नो डाउट चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबके बस की नहीं है। बट योर जर्नी विच इज़ एन इंस्पिरेशन टू ऑल पीपल, दैट पीपल के यू हैव क्रिएटेड अ मॉडल, आई वुड से, जिसमें कि लोगों ने, आपने सिर्फ ना कि पोरेस्ट ऑफ पोर को सर्व किया है, बट यू हैव enabled them to understand the law and get benefit of that. Absolutely. So it was a great conversation talking to you, and also we know much more about corpus juris, which where any new law student can participate and take their internship. They also understand, and they can choose their path. Absolutely. In future. That is one thing, and I am very happy that you are also thinking of to give a glimpse of and story or navigation of a person who had lived that journey of getting the justice. So this is all about that. So it was great discussing everything with you. So what is your view, or you want to say something? See, I want to thank you for this opportunity, and I also enjoyed interacting with you. मुझे लगता है कि बड़े लोगों की बात तो बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे और बहुत बड़ी तरह से होती है, लेकिन आम आदमी की बात बहुत अधिक नहीं हो पाती है, और आम आदमी की रियल लड़ाई की बात जो है वो बहुत कम हो पाती है। तो इसीलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने क्लाइंट्स की और अपने उन लोगों की जिनके लिए मैं लड़ता हूँ उनकी बात आपके साथ कर सकूँ, एंड आई रियली एन्जॉयड दैट। थैंक यू सो मच। एंड मेरा जो विचार था, जो मैंने आपको कहा कि आपको वकीलों से और जजेस से तो सब बात करें, आपको कुछ क्लाइंट्स से भी और कुछ रियल लोगों से भी जो इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, विक्टिम्स रहे हैं या बेनिफिशियरीज रहे हैं, उनसे भी आपको बात करनी चाहिए तो मेरी अगर उसमें कोई मदद की आवश्यकता हो तो मैं करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। हम उसको साथ में कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब इसको थोड़ा बदलने की ज़रूरत है कि जो इस सिस्टम का मूलभूत उपयोग करता है और जिसकी वजह से ये सब चल रहा है, जो लिटिगेंट है, उसकी बात होनी चाहिए और उससे बात की जानी चाहिए, तभी इस सिस्टम में बदलाव आ सकते हैं। एज रिगार्ड्स तो स्टूडेंट्स की मैंने बात कही, हमारी आपने बताया ही, हमारी वेबसाइट है www.corpusjurisindia.com, जहाँ पर लोग इंटर्नशिप के लिए अगर चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं। वी एनकरेज पीपल टू इंटर्न विद अस फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। पीपल आर कमिंग, seats are limited, therefore don't get dissuaded if in case your applications are not accepted for this month. Try it for another month or so, and it will certainly be allowed, okay, in times to come. And we enjoy working with students, and I can say so after hearing several students that students also enjoy working with us. But don't limit yourself with my kind of work. Please go ahead, and as I said, for all the law students, they should go ahead and interact with different kinds of legal practices and legal avenues that will go ahead and help them understanding their avenues much better.
And at the end, thank you so much. I really enjoyed interacting with you. Chalo, it's Thank you. Yes.